Hello everyone. So we have Madhav Somani today. He is one of the मतलब यू कैन से इन्फ्लुएंसर और इंस्टाग्राम क्रिएटर जिसको सब लोगों ने देखा होगा जो माइक्रोसॉफ्ट या गूगल एम करता है. He is a senior software engineer at Microsoft Redmond office headquarter. We were trying to catch up since last 2 weeks, but टाइम जोन की वजह से इंडिया यूएसए तो Yeah, इतना मैच नहीं कर पा रहा था. 13.5 hours का डिफरेंस है. सो वी आर लकी. सो वी हैव टुडे on our podcast. So माधव भैया कैसे हो आप? ekdam badhiya. How are you? I Karthik, am my also apology, man. good. It took me some time to connect here, but I'm so happy that we are able to meet finally. तो थोड़ा आप अपने बारे में इंट्रोडक्शन बताइए जो जैसे कुछ लोग होंगे जो आपको फेस से रिकॉग्नाइज कर लेंगे लेकिन आपको जानते नहीं होंगे बिकॉज उन्होंने आपकी कहीं रील तो देखी होगी ऐसे तो हो नहीं सकता. तो एक बार उनके लिए आप इंट्रोडक्शन दे दीजिए. Hey guys, Madhav Sumani here. I am a senior software engineer in Microsoft. I make networking tools. I make AI tools. The recent project I did was related to Copilot. I built a Copilot for Microsoft. And if you're in Azure, you're using Copilot, there is a big chance that you're using my products. Um, I started my journey 15 years back, 15 to 18 years back in Nagpur, in a very small area, in a very small location. And I am just like anyone else. There is this kida of computers in me, which just kept me pushing for bigger and bigger things. That's me. My passion is computer. I love AI. I love machine learning. I love anything digital. I'm a big tech person. Um, I wake up at 2 a.m. and just keep coding. I just can't sleep without coding something in. So that's me, and I would love to share my insights with you guys. Anything which can help you also achieve your dreams. कि आपने नागपुर से स्टार्ट करा था, फिर Hmm. आप सिएटल मूव करे, आपने कुछ मास्टर्स वगैरह करी एंड Hmm. देन आपने यूएस में एक घर भी खरीद लिया है. एंड Hmm. दैट्स अ अचीवमेंट फॉर मतलब एनीवन बिकॉज़ मैं अभी इस साल हम एस्पायर के लिए यूएस आए थे एंड हमने देख Hmm. लिया कि भाई यूएस कितना महँगा है. बहुत एंड वहाँ महंगा पे घर है. खरीदना तो मतलब Yeah. इट्स लाइक अ ड्रीम फॉर एनीवन. सो वो थोड़ा अपनी जर्नी के बारे में बताओ कि आप कैसे नागपुर से सिएटल गए, मतलब सिएटल Hmm. नहीं मास्टर्स के लिए यूएस गए एंड देन आपने ये सब करा. Yeah. So the thing I started with was मैं जब 12 साल का था, the first time I started computer was मेरी बहन ने मेरे को एक CRT monitor gift किया. CRT monitor, हाँ, old, हाँ. very old CPU, it's a second hand CPU I got from my sister. And then the first thing I did as any kid who is 12 or 13-year-old, I started playing games on it. And one of the games I ended up with was Project IGI. Now, Project IGI is one of these games which, if you guys seen, it's a shooting game where you shoot enemies and basically go level up, right? The only problem was I was really bad at this game. मैं इतना खराब खेलता था वो गेम कि इवेंचुअली मैं एक ऐसी जगह पे आ गया था जहाँ पे आई कांट विन अनलेस आई हैव मोर बुलेट्स एंड आई एम लाइक कहाँ से लाऊं गोली गोली तो खत्म हो रहा है. तो आई वेंट ऑन लाइक द कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ दैट गेम और मेरे को वहाँ पे कोई टीएक्सटी मिलता है. उस टीएक्सटी में ऐसा लिखा रहता है 330 बुलेट्स. मैं उसके साथ चेंज करके 999 कर देता हूँ. इट्स लाइक क्या ही होगा. मैं जैसे ही नेक्स्ट टाइम आई स्टार्टेड प्लेइंग दैट गेम अगेन एंड सडनली देयर इज लाइक 999 बुलेट्स एंड आई वाज लाइक ब्रो ओह! ये क्या हो गया भाई दिस हैकिंग. मैं मेरे अंदर वो जुनून आ गया कि इफ वन लाइन ऑफ कोड कैन गिव मी unlock this level, imagine what I can do with with so many lines of code, so many lines of configs and values and these numbers. Everything is in my mind right now. I'm like zoned out ki yaar, I just hacked a game. Someone like made this game in America and I'm playing it and I am able to hack it. Technically it was just a configuration change, but that idea was good enough to spark something in me. It told me that is the world that easy to control? Is the world just behind few lines of code? And it just sparked. And then I started my ethical hacking journey. Ethical में अभी लगा रहा हूँ cause मुझे जेल नहीं जाना, but उस टाइम पे वो ethical नहीं था. ओके. So I started my hacking journey and I started learning more and more tools. And this is me being like 12, 13. I started reading
more books. And उस time पे there was internet was like absolutely like shit. It's like that dial up का internet, उसको चला रहे हो तो पता नहीं क्या चल रहा है वो. वो Reliance का एक आता था 2G dongle. When you put it in, it's like 1 Mbps का connection. Sometimes like 256 kbps, which is like आप जिंदगी भर एक आर्टिकल पढ़ने में लगा सकते हो, लोड नहीं होगा. That was the article, like that was the speed I was dealing with. So I'm learning hacking on 256 kbps, but I was not giving up. I just wanted to learn. And eventually I kept following more and more people. I kept following who was the latest ethical hacker at that time, who was doing what, and what can I do better here, right? So I started with that, and then I started coding. And that's where I introduced to coding, because viruses are like any other software. Rather than making a software which can connect to networks, you create a software which can break two networks. Exactly opposite of what software does. Viruses are still software engineering, it just you code it in a different way. That was the first time I started coding. And but since देख के इतना मजा आता था, I started with like batch program. Or I was a kid, so बहुत complex logic I was not able to understand, right? At that time, if I don't know if you guys remember, batch the .bat करके एक फाइल्स होती थी पहले, बहुत Mm-hmm. कॉन्फ़िगरेशन विंडोज की ओल्ड फाइल होती थी. व्हाट इट यूज्ड टू डू, उसमें कमांड प्रॉम्प्ट की कॉन्फ़िगरेशन यू कैन पुट इट इन बैच प्रोग्रामिंग, एंड यू कैन मेक कंप्यूटर डू मल्टीपल थिंग्स इन लाइक अ पावरशेल स्क्रिप्ट फैशन. Mm-hmm. तो मैं वो स्क्रिप्टिंग चालू किया, एंड उसके अंदर आई स्टार्टेड writing multiple codes, multiple things, multiple tools. Eventually, I ended up with like scripts I was able to write, which could take your Chrome password and write it into my own CD. So if Okay. I put that CD in, whatever Firefox or like Internet Explorer, whatever you had, all your saved password, I will take that and burn it into my CD. So I just can go to a friend's house and put that CD in. उसको बोलूंगा आज चाय पीते 2 मिनट में CD निकालूंगा, सारे पासवर्ड अंदर. तो दिस ऐसा हैकिंग टूल बना लिया. एंड आई एम लाइक, अब तो मेरे और बिल गेट्स के बीच में कोई जगह ही नहीं है. बस पहुंच ही जाऊंगा. तो ये सीडी बनने के बाद, that's like the first time I created something, and I wanted to earn from it. And the whole point was my family was not very comfortable at that time. हम लोग बहुत लोअर, पता नहीं क्या बोल सकते हैं. किसी को हर्ट नहीं करना चाहता मैं, बट लोअर मिडिल क्लास में आते थे हम लोग. हम लोग कोशिश करते थे टू सर्वाइव, बट इट वाज वेरी हार्ड. सो माय माइंड वाज कैसा भी हैक करने का है, बट पैसा कमाने का है. सो इट वाज टू थिंग्स कनेक्टेड. So when you have two things, right? One, the passion of learning something, and two, survival. If you don't learn this passion, you might die. When you connect these two in any form, I think that's where wonders happen. You take an idea and you're very passionate about it, connect it with your survival. Say that, oh, I will not sleep if I can't get this thing done. I will die if I can't get this thing done. This, I don't have any meaning in life if I don't have this. If you combine the hunger from it, magic happen. And that's what happened with me. I combined those two things, and now I'm writing code every single night. I'm building those CDs, more and more CDs. And by the age of 14 and 15, I am one of the best players in ethical hacking world in my state, in Maharashtra. And people started noticing that, and that's where a lot of opportunities started to open up. And from there, now in America, House, Microsoft, everything started from that small passion thing and hunger of survival. And I can go on and on and on. This, I won't stop. This, the whole journey is like 15 years, so it will take more than 15 minutes to explain. Miracle happens when Mm-hmm. you are so persistent. I don't know if you guys believe in God. I do want you to know, whatever you believe in, it's miracles will happen as long as you're persistent. It's either universe giving it to you, it's either God giving it to you, it's either you giving it to yourself. As long as you are persistent, it will deliver you results. One of the key things I learned here was, um, just because मेरा फैमिली गरीब था ना, तो हम लोग बहुत एक काइंडा स्लम, काइंडा सोसाइटी में रहते थे हम लोग. नागपुर में वेंकटेश कॉलोनी करके एक जगह है. वो कम्युनिटी के अंदर यू विल नॉट सी इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, यू विल सी लेबर्स, हार्ड वर्किंग पीपल हु आर डूइंग रेगुलर लेबर वर्क. वहां पे आपको स्मार्टनेस नहीं मिलेगा, राइट? एंड आई वांटेड टू गो अवे फ्रॉम दैट प्लेस.
सो व्हाट आई हम्म डिड वाज आई स्टार्टेड मेकिंग दो सॉफ्टवेयर्स। और मैं उनको भी देख रहा हूँ, वो लोग ये नहीं बोल रहे करके कि ओ आई विल वेट फॉर द अपॉर्चुनिटी टू कम। वो लोग नीचे जा रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं। वो दहाड़ी करेंगे, 20 रुपया कैसा भी कमा लेंगे, कैसे भी करके वो ट्रक पे चढ़ जाएंगे और दे विल नॉट गिव अप। सो उन वो लोगों से मुझे वो चीज सीखने मिली। तो डोंट शेल पीपल आउट, वन ऑफ द एडवाइसेस आई कैन गिव। एनी फॉर्म ऑफ पीपल विल टीच यू समथिंग, एंड दोज हम्म पीपल taught me how to take your own opportunities rather than waiting for it. तो मैंने वो 20 रुपए का, मैंने जो सीडी बनाया था ना सॉफ्टवेयर का, उसमें मैंने सब 20 रुपया लिख दिया। उसमें नीरो से मस्त मैंने कवर बनाया, नीरो करके एक बहुत बड़ा पुराना टूल है। उसको हम्म नीरो यूज करके मैंने सीडी का एल्बम बना दिया। ठीक है, जैसे पहले म्यूजिक के कैसेट्स आते थे। और नीचे जाके मैं 20-20 रुपए में बेचने का कोशिश कर रहा हूँ कि इसको बेचूंगा, बिल गेट्स के सामने खड़ा हो जाऊंगा। कोई खरीदा नहीं, वो अलग बात है। तो 10 दिन तक किया मैंने, कोई खरीद ही नहीं रहा। सब अब मैं एक तो ऐसी जगह बेच रहा हूँ जहाँ पे किसी को घंटा पता है सॉफ्टवेयर क्या होता है। हम्म तो मेरा मॉडल ही खराब था। बट द हंगर, अब उसमें मिरेकल देख क्या हुआ। हम्म मैं गया उसको बेचने के लिए, 10 दिन हो गया है, एक आदमी ने मेरा एक सीढ़ी नहीं खरीदा। ठीक है, और मैं बेचने का कोशिश कर रहा हूँ। मैं 14-15 साल का ही हूँ, मैं बहुत छोटा आदमी हूँ। एंड मैं एक दुकान में जाता हूँ नागपुर में, पैराडाइज करके एक जगह है। ठीक है, पैराडाइज वर्धमान नगर में एक छोटा सा मोबाइल शॉप है। मैं वहां जाता हूँ और मैं वहां बेचने का कोशिश करता हूँ। नाउ दिस गाय नोज मी, ही इज लाइक ओ दिस गाय छोटा सा बच्चा है बट कोडिंग वोडिंग करता है मस्त एकदम। तो बोला हाँ तू इधर रख, मैं देखता हूँ। और बाई चांस तेरे को पता है क्या हुआ उस दिन, 15 साल पहले, 15 साल पहले नागपुर का सबसे बड़ा, आई थिंक उस टाइम में महाराष्ट्र का ही सबसे बड़ा हैकर था वो। महाराष्ट्र का सबसे बड़ा हैकर महेश रखेजा एंडेड अप इन दैट शॉप। एंड ओके वो बहुत लाइक ही यूज्ड टू टीच हैकिंग, ही यूज्ड टू बी लाइक दैट सिविल सर्वेंट जो साइबर क्राइम में जाके मदद करता है, अटैक करता है लोगों को, एंड हैकर है वो, और वो क्रिमिनल्स पकड़ता है एंड ऑल दैट थिंग। इट्स क्रेजी गाय। एंड ही एंडेड अप सीइंग मी सेलिंग दिस सीडी। एंड वो देखा मट्टू भैया, आई कॉल हिम मट्टू भैया विद लव। Mattu saw that one kid is selling the software CD and miracle happened. He was like, मैं तेरे को सिखाता हूँ और, and he took me under his wing. And now मैं उनके घर गया हूँ आधी घंटे के अंदर अंदर। एंड वो मुझे खाना खिलाते खिलाते चीजें मेरे कोड पढ़ रहे हैं कि तूने कैसे लिखा ये, क्या किया ये। एंड आई एम लाइक, मैंने ऐसा ऐसा किया, मैंने वैसा वैसा किया एंड ऐसा किया। एंड ही वाज जस्ट अमेज्ड हाउ अ 15-year-old kid can do all these things. Now look at miracle, right? Look at how universe worked in that way. Me trying to run away from my survival situation, trying to earn some money for my family, ended up in a place where my talent can be sharpened by this person somehow. And this is the only person in whole Nagpur who should be seeing this software. And he saw it and he took me under his wing. And now the next 2 years, he just taught me everything he know about ethical hacking. And जहाँ पे वो पढ़ाते थे ethical hacking, एक इंस्टीट्यूट में नागपुर के, वहां पे मैं टीचर बन गया at the age of 16. तो मैं वहां पे अभी इथिकल हैकिंग पढ़ा रहा हूँ उनकी जगह पे। एंड वो साइबर क्राइम पे ज्वाइन कर लिए उस टाइम पे, जो डिवीजन था नागपुर का। एंड ही इज हेल्पिंग कैच क्रिमिनल्स। एंड मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ जो मेरे से 40 साल बड़े हैं। अब मैं 15-16 साल का हूँ, मैं उन लोगों को पढ़ा रहा हूँ जो मुझसे 40-40 साल बड़े हैं। एंड दैट वाज अ बिग लव, लाइक बिग मिरेकल फॉर मी। And that's where the whole journey started. That's where, like, this whole segment I just told you guys, in that last 2 years, if I was not persistent, maybe मेरे को मट्टू नहीं मिलता। If I was not persistent, maybe मुझे आइडिया नहीं होता कि सॉफ्टवेयर कैसे लिखते हैं। If I was not persistent, maybe मैं कभी सॉफ्टवेयर, वो इथिकल हैकिंग का टूल सॉफ्टवेयर की सीढ़ी में नहीं डालता और कभी नीचे जाके नहीं बेचता। ना मुझे बिजनेस एक्यूमेन आता, ना मुझे मट्टू मिलता, ना अगर मैं रात भर नहीं जगता, है ना, रात भर जग के अगर मैं कोड नहीं करता, मे बी मुझे कोडिंग नहीं आता। मे बी मैं कभी वो प्रोजेक्ट आईजीआई में जाके आई कुडंट हैव लाइक चेंज द बुलेट। मैं अगर अपना कंफर्ट जोन नहीं छोड़ता उस दिन कि नहीं यार हार मान लेता हूँ, क्या लेवल ही तो है, गेम ही तो है, जाने तो जो होगा देखा जाएगा, करता, मे बी आज मैं तेरे साथ बैठ के बात नहीं कर रहा होता। सो दो स्मॉल स्मॉल लाइक डिसीजंस आई मेड इन लाइफ मेक्स मी रियलाइज कि कितना चेंज हो जाता है लाइफ इफ यू जस्ट मेक द राइट डिसीजन एट द राइट टाइम। सो जस्ट अ स्टोरी ऑफ मिरेकल। आई होप यू गाइस लाइक इट। अगर if you believe in it, it will happen. Just be persistent. उस समय तो यूट्यूब ट्यूटोरियल्स भी नहीं होते थे एंड हम पे Yeah. इंटरनेट कनेक्शन भी नहीं था इतना अच्छा, क्योंकि इंटरनेट कनेक्शन तो काफ़ी दिन बाद आया है, मतलब 2018-19 में जब जियो कुछ आया नहीं था। लगा है, त कुछ नहीं। There was वो nothing there. मैंने वो देखा है भाई कि 2 जीबी का महीने का रिचार्ज होता था वो बीएसएनएल और एयरटेल वगैरह का। तब तो Yeah. भाई यूट्यूब तो सही नहीं था। तो आपने तब सीख लिया ये सब चीज़ें, मतलब थोड़ा हैकिंग वगैरह, भाई ये तो
थोड़ा माइंड ब्लोइंग था। हाँ, हाँ। भाई मेरे ट्रोजन चलते थे। मैं मतलब बोल नहीं सकता वीडियो पे क्या-क्या होते थे। The things I created in ethical hacking world penetrated the world in an unprecedented way. Before Bitcoin mining was a thing, there were my so-called softwares were mining Bitcoin from other people's system across India. I had Bitcoins which are worth like $500,000 now back in 2012. So hacking is a very big part of my life. I made a lot of softwares out of it. I made softwares which could do magic, and yeah, I still love it. But hacking won't pay our bills. बिजली का पैसा ये हुँ। सब हैकिंग नहीं देता है ज़्यादा लीगली तरीके से। तो I had to change my career from ethical hacking to software development. I learned a lot from a place where there was no internet. And yeah, so just letting you know, it's not like thoda, it's just the amount of knowledge I had to grab when there was no YouTube. कैसे हुँ। कैसे फोरम्स पे जाते हो आप, कैसे कैसे आर्टिकल्स पे जाते हो, कैसे कैसे आप टॉर के अंदर जाते हो, इट्स लाइक हुँ, हुँ, हुँ। डार्क वेब। सो हुँ, डार्क हुँ, वेब हुँ। पहले के टाइम पे और भी ज्यादा अनरिस्ट्रिक्टेड था, ओके। एंड यू कुड लर्न अ लॉट फ्रॉम देयर टू। नाउ आई वुड नॉट रिकमेंड इट। हुँ, ऑलमोस्ट हुँ, हुँ। एवरीथिंग यू वांट टू लर्न will be on YouTube. You don't हुँ, हुँ। ever need to like open any other platforms. Like आपको डार्क वेब का ज़रूरत नहीं है, आपको लोगों का ज़रूरत नहीं है, आपको मेरा ज़रूरत नहीं है, आपको मट्टू का ज़रूरत नहीं है। हम सब का रिक्वायरमेंट नहीं है टू टीच यू समथिंग। एवरीथिंग इज़ हुँ, देयर ऑन द इंटरनेट। इफ यू आर पर्सिस्टेंट इनफ, यू कैन लर्न एनीथिंग यू वांट। आज हुँ, अपना खुद का ओपन एआई खड़ा कर सकते हो इन लाइक लेस देन 2 डेज़। नॉट लाइक भयानक इतना हुँ, हुँ, मस्त मॉडल बना दोगे, बट सबसे फालतू GPT-2 जैसा मॉडल आप 2 दिन के अंदर ट्रेन कर सकते हो। व्हाटएवर ओपनएआई डिड, राइट? यू गाइस कैन डू इट टू। इट्स जस्ट नॉलेज। आप रिसर्च पेपर पढ़ो, उनके एल्गोरिथम्स देखो, उन लोगों का देखो कौन-सा कोड यूज़ किया, पाइथन यूज़ किया, पाइटॉर्च यूज़ किया, व्हाट काइंड ऑफ डेटा सेग्रीगेशन वाज़ देयर, व्हाट काइंड ऑफ मशीन लर्निंग मॉडल्स दे यूज्ड, कैसा न्यूरल नेटवर्क बना, कैसा पैरामीटर चेंज हुआ, ये सब बहुत ईज़ी है करना। बस अगर आप हुँ। पढ़ लो, वो चीज़ अगर पढ़ लो ना, बहुत ईज़ी है करना। क्या है ये बटन में ही तो दबाना है, करना ही क्या है? इट्स नॉट लाइक तुम ऐसा जाके कुछ क्वांटम फिजिक्स में पार्टिकल भिड़ा रहे हो। डिजिटल वर्ल्ड तो भाई तेरे लैपटॉप के अंदर सब कुछ हो जाएगा। मेरे को समझ हुँ, नहीं आता जब लोग बोलते हैं करके कि ओह आई कांट डू दिस। व्हाट नॉनसेंस आर यू टॉकिंग अबाउट? जैसे अपने क्रश को मैसेज भेजता है ना तू, बस वो लैंग्वेज को चेंज करके ही तो बात करना है सी प्लस प्लस में, जावा में। जिस तरह क्रश ऐसा आई लव यू, वो ऐसा जो 4 वर्ड लिखता है ना, वो उसको कोडिंग में लिख दे, बात खत्म। मैजिक, नॉट अ बिग थिंग, इट्स ऑल वेरी ईज़ी टू लर्न। If anyone asks you for money to teach you this, they are scamming you. Never give money to learn coding, software engineering, or anything. Everything can be done. नागपुर से शायद आपने बैचलर्स करा था, ठीक है? Yes. एंड फिर आप वो सा कैसे मूव करे कि आपको यूएस कैसे अपॉर्च्युनिटी मिली? जे आपने So, मास्टर्स क्योंकि यूएस से करी है? yeah, तो कैसे the gap was once जब मैं 15 साल का था, जब मैं टीचिंग कर हुँ, रहा था हुँ। ना, तब मेरा सैलरी 8,000 रुपया भी नहीं था महीने का, हुँ, हुँ। जबकि मैं बहुत टाइम दे रहा था। तो मैंने सोचा करके कि इंजीनियरिंग कर लेता हूँ। मैंने सुना है इंजीनियरिंग के बच्चों को काफ़ी सैलरी मिलता है, और हुँ, मुझे हुँ, हुँ। ऑलरेडी कोडिंग वोडिंग आता था। तो आई स्टार्टेड डूइंग इंजीनियरिंग। मेरा पापा का उतना अच्छा फाइनेंशियल कंडीशन नहीं था, तो हम लोग कैसे तो भी फीस जमाने का कोशिश करते। तो एक साल वो जमा दिए, एक साल मैं जाके पढ़ा दिया कहीं पे, या मैं हैकाथॉन करने चले गया। तो हैकाथॉन में मैं जीत जाता, मतलब ऐसा बढ़ा के नहीं बोल रहा हूँ, बट मेरा नीड था जीतना। अगर मैं नहीं जीता हुँ, तो मेरा हुँ। इंजीनियरिंग नहीं होता, ऐसा वाला बात है। तो मैं बहुत सारे हैकाथॉन करता था। 3-4 साल का अगर आप हैकाथॉन कर लोगे ना, और फर्स्ट सेकंड भी आ गया ना, तो 1 लाख रुपए जम जाता है। तो 1 हुँ, लाख रुपए लेकर इंजीनियरिंग कर लिया मैंने। ऐसे कर के मैं 4 साल निकाला एट ऑल कॉस्ट। जब इंजीनियरिंग कर रहा था ना मैं, आई ऑलरेडी बिफोर आई डिड माय फाइनल ईयर, मैं 3rd ईयर से ही इंटर्नशिप्स कर रहा था। मेरा 3rd ईयर फाइनल का 3rd सेमेस्टर एंड 3rd ईयर एंड 4th ईयर, दोनों साल मैं कंपनी के साथ प्रोजेक्ट्स बना रहा था। एंड आई सॉ मज़ा बहुत आता है, बट जब आपकी मेहनत के लिए अगर आपको 8,000 से 22,000 हो गया मेरा सैलरी, नागपुर में कौन ही देगा इससे ज़्यादा। तो 22,000 हो गया ना, तो आपको लगता है करके कि यार ये तो नहीं सोचा था ना मैंने, 22,000 में मेरी फैमिली पॉवर्टी से बाहर नहीं आने वाली भाई। मेरे 22,000 में मेरे कौन से बंगले बन जाने। तो दैट मेक्स यू रियलाइज़ कि नहीं यार, मेरा टैलेंट अच्छा है, बट मैं गलत मार्केट में बैठा हुआ हूँ। इमेजिन यू आस्किंग फॉर
1 करोड़ सैलरी इन अ प्लेस जहाँ पे मुश्किल से लोग 10-20 हज़ार रुपए भी नहीं कमा पा रहे सॉफ्टवेयर के इसमें, राइट? मतलब अगर तू मंदिर में जाएगा और मंदिर में प्रसाद बँट रहा है और तू वहाँ पे जाके बोलेगा मेरे को मसाला डोसा चाहिए, तो देगा क्या तेरे को? भाई प्रसाद देता ही तो है, सबको दे रहा है। तो इट्स नॉट लाइक अब तू मंदिर के सामने जाके हड़ताल कर, हाँ भैया मेरे को तो मसाला डोसा नहीं खाना। ऑब्वियसली नहीं यार, तू चेंज करना, गो टू सम अदर प्लेस, हम्म। फाइंड another institute which can pay you well, right? And that's where I figured it out. India was not something I could rely on to make money out of. Lovely people, lovely talent, बहुत मजा आता है काम करने में, बट उस चीज का टैलेंट का पैसा नहीं मिल रहा था. So I decided to do masters where I could learn more, right? And then the market would be big enough कि मेरे टैलेंट को शायद पैसा मिल जाए. So that's where the thought process came from. Do engineering. Never wanted to go to America. Like, well, I started engineering, right? It never came to my mind कि वो I will land up in like America. सबको लगता है कि सब बाहर बाहर जाएंगे, बट कभी ऐसा सोचा नहीं था कि इंजीनियरिंग के बाद बस जाना ही जाना है, राइट? आप ऐसे सिचुएशंस में आ जाते हो कि आपको लगता है करके कि अब जाना पड़ेगा. तो नेवर प्लान्ड एनीथिंग, जस्ट विद सिचुएशन आई वेंट ऑन डिसाइडिंग कि मुझे क्या करना है. ऐसा तेरे को अगर मैं कोई इजी चीज दूंगा तू ले लेगा क्या? नहीं। यही तो फंडा है भाई. कोई हार्ड चीज होगा उसी को करने में तो मजा आएगा ना, तभी तो ऐसा खून गिरना चाहिए भाई बॉडी से, एकदम मजा आएगा. रात में नींद उड़ जाए साला, 2 दिन तक आदमी सो नहीं रहा है, टेंशन के मामले बाल गिर रहा है, तब मजा आता है. ये तो है। तो अमेरिका इज लाइक दैट. अमेरिका, इंडिया में आई थिंक हमें बिगाड़ दिया गया मेरे नजर में. मुझे ऐसा लगता है करके कि अपने को बहुत स्पून फीड करते हैं इंडिया में. इंजीनियरिंग में तेरे मुंह के अंदर असाइनमेंट डाल देंगे. तेरे को खुद भी तो कर लेना चाहिए ना असाइनमेंट. अगर तेरे को टीचर आके बोल रहा है कि भाई हम मेक दिस सॉफ्टवेयर फॉर अस, जावा का प्रोग्राम बना ले, ठीक है? अब देयर इज विद इंडिया द प्रॉब्लम, एंड आई प्रीटी श्योर शायद टॉप इंस्टीट्यूट में ना हो, तो मेरा इंस्टीट्यूट में हम लोग अभी भी ग्रो हो रहे थे वो इंस्टीट्यूट में, राइट? अभी भी वो यूनिवर्सिटी बढ़ रहा था. नागपुर का यूनिवर्सिटी वाज स्टिल ग्रोइंग. दे हैड नो आइडिया हाउ द वर्ल्ड इन लाइक वर्क्स व्हेन टीचिंग. हमारे टाइम पे क्या होगा, अगर एक बंदे ने भी सॉफ्टवेयर एक जावा का प्रोग्राम लिख दिया ना, सब के सब कॉपी कर लेंगे. टीचर को भी फर्क नहीं पड़ेगा कि सबने कॉपी कर लिया है. 2 बच्चों को डांटेगा बट 1000 लोगों को थोड़ी पनिश कर सकता है. सिस्टम ही ऐसा बन गया था. अब जब आप अमेरिका आते हो, प्रॉब्लम लोगों को क्यों टफ लगती है कि यू वेंट विद दिस माइंडसेट कि नहीं यार जो ये करेगा मैं भी वो कर लूंगा. और जब यू लैंड अप इन अमेरिका, द फर्स्ट क्लास, मेरा फर्स्ट क्लास, आई केम इन अमेरिका एंड आई एम स्टडिंग सिस्टम डिजाइन. और मेरा प्रोफेसर और द फर्स्ट बैच इन यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास, देयर वर 50 पीपल. हम लोग पढ़ते हैं सबके सब 50. वो आते हैं प्रोफेसर विद हिज वेरी थिक टेक्सास एक्सेंट. तो पहले तो समझने को ही समय समय लग रहा है कि भाई ये बोल क्या रहा है. उसके बाद उन्होंने हमें एक असाइनमेंट दिया एंड हम लोग को असाइनमेंट करना चालू किया. नेक्स्ट हफ्ते में आ रहा हूँ क्लास के अंदर, 50 में से सिर्फ 5 बच्चा बचा है. 45 बच्चे गायब. एंड हम लोग सोच रहे कहाँ गए ये लोग बच्चे, वो लोग. अब मुझे पता चल रहा है, मेरे दोस्तों का कॉल आ रहा है करके कि भाई हमें कोड बुला रहे हैं. कोड बुला रहे हैं? अबे 1 हफ्ता तो नहीं हुआ अमेरिका आए हुए, कोड कहाँ जा रहा है? अभी अभी तो पहुंचे हैं, इतनी जल्दी थोड़ी चले जाएंगे. तो पता चलता है करके कि 45 बच्चों को कोड बुला लिया. क्यों बुला लिया है? बिकॉज ये लोगों ने असाइनमेंट कॉपी कर लिया. अब सोच, एक बंदे ने असाइनमेंट लिखा, बाकी के 40 बच्चों ने सिर्फ छापा है, ठीक है? और उन लोगों ने ऑनलाइन पोर्टल में सबमिट कर दिया. अब नाउ यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास, दे मेक श्योर plagiarism is a very big thing. Even if you copy like 10% of your code, they would know, and they will make sure you remember this decision. So they basically failed everyone in that class, and they made sure no one does this again. They bought all 45 people to student courts. एंड स्टूडेंट कोर्ट में उनको कटघरे में खड़ा करके दे आर आस्किंग कि आपने कैसे कॉपी किया, क्यों कॉपी किया. एंड सबका फटा पड़ा. एक तो इंडिया में तो हम काफी नॉर्मल था ये चीज करना, तो और हमारे पास 45 के सारे इंडियन ही थे. तो ये लोग जब अमेरिका आते हैं ना, दे वर इन लाइक शॉक दैट दे कांट कॉपी स्टफ. दैट्स व्हाई इट इज हार्ड. अब जब उनको फेल लगा, उनको फेल कर दिया गया असाइनमेंट, और बहुत खराब होता है. फिर क्या होता है करके कि आपको इंडिया भी जाने नहीं देंगे 1 साल के लिए. आपको बोलेंगे करके कि सिंस यू हैव फेल्ड दिस क्लास, यू हैव टू स्टे इन अमेरिका फॉर 1 ईयर अंटिल यू क्लियर अबव 3.0 जीपीए. और बहुत सारे ऐसे रूल्स एंड होते हैं. आपका ये पैसा भी गया. तो ये सब्जेक्ट पढ़ने के लिए आपने 3 लाख रुपए दिए थे.
ठीक है? 3 का 3 लाख गया, ठीक है? किसी ने 5 दिया होगा, किसी ने 3 दिया होगा, वो पैसा नहीं देंगे वापस और आपको फेल कर देंगे। अब आपके ट्रांसक्रिप्ट में फेल लिख के आ रहा है, मतलब आपके पहले हफ्ते में आपके ट्रांसक्रिप्ट में एफ आ चुका है। जब इतने बड़े कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं ना, तो लगता है कि इतना डिफिकल्ट है ये, ठीक है? बट प्रॉब्लम क्या था? हम लोग स्टडी ही नहीं किए, हम लोग सोचे ही नहीं करिए कि असाइनमेंट कॉपी करने का ज़रूरत क्या है? फालतू सा जावा प्रोग्राम ही तो है, क्या ही होगा? 20 लाइन ही तो कोड लिखना है, पढ़ लेता हूँ खुद से, देख लेता हूँ कैसा लिखना है। क्या होगा मैक्स 4 घंटा ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, उतना ही तो करना था। उसके लिए आपने 3 लाख रुपए बर्बाद कर दिए, एफ लगा दी, बिकॉज़ इंडिया में कॉन्सिक्वेंसेस हमें फेस करने नहीं मिले। दैट्स व्हाई इट इज़ हार्ड। अब हम लोग कैसे थे? हम लोग स्टार्टिंग से ही वी वर लाइक कि यार वी वर दैट वन किड जिसका सारा लोग असाइनमेंट कॉपी कर लेगा, ठीक है? तो वी वर दैट वन पर्सन की कॉपी करने का ज़रूरत नहीं है बिकॉज़ वी नो दिस स्टफ, है ना? हम लोग लाइफ में ये सब प्रिपेयर होते हुए जाते थे। इंजीनियरिंग हम लोग इसलिए नहीं करने बिकॉज़ करनी है इंजीनियरिंग। हम लोग इंजीनियरिंग कर रहे हैं बिकॉज़ हमें ये चीज़ पसंद है और इंजीनियरिंग इज़ अ सेगमेंट टू लर्न इवन मोर। वो लोगों के लिए एंड आई विश एवरीवन इज़ लाइक दिस, आई रियली होप एवरीवन इज़ लाइक दिस। अगर आप वो सेगमेंट में हो ना, तो आपको कॉपी करने का ज़रूरत नहीं पड़ता है और लाइफ में आपको ये चीज़ बहुत बेनिफिट देता है व्हेन यू ट्रूली बिलीव इन योर सब्जेक्ट्स, इफ यू ट्रूली बिलीव इन योर फील्ड ऑफ वर्क, तो फिर वो हार्ड नहीं लगता है। So if you're coming to America, one key advice, make sure do you really want to go there just to earn money or do you really want to go there to like grow together, study, learn something new, नए कल्चर में आओगे, do you want to meet new people, then make money। ये सब ऐसा अमेलगमेशन के साथ अगर आप आओगे ना तो बिल्कुल हार्ड नहीं है, बिल्कुल कुछ नहीं है भाई, आराम से कर लेगा तू। लेकिन सिर्फ पैसा कमाने के लिए आ रहा है, छाप छाप के पढ़ना है तो मत ही आ। वो तेरा पैसा भी ले लेंगे, तेरे को जेल में भी डाल देंगे और मार मार के बाहर निकलेंगे। तो मत आना भाई। बिल्कुल ऐसा सोच के आना। आज भी किसी यूनिवर्सिटी के बच्चे को कॉल करेगा ना अमेरिका में, उनको हाँ, बोलेगा हाँ। कि प्लेजरिज्म कितना बड़ा प्रॉब्लम है। उनका फट जाएगा भाई बोलते-बोलते। भयानक बड़ा प्रॉब्लम है। इंडिया में अगर भाई छाप-छाप के पढ़ाई की हो, तो अमेरिका आपके लिए सही जगह नहीं है। ओके। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ करके कि आपको आता नहीं है कुछ, नहीं भाई तू कर लेगा, उखाड़ लेगा ज़िंदगी में, बट यहाँ नहीं उखाड़ पाएगा। यहाँ का सिस्टम हुँ, थोड़ा अलग है और तेरे को बहुत चैलेंज दे देगा वो, अगर तूने छाप के पढ़ाई की है। अगर तूने छाप के पढ़ाई नहीं की है, मैं गारंटी बोलता हूँ अमेरिका इतने ज़ोर का पप्पी लेगा तेरा, तू मज़ा ही आ जाएगा तेरे को। इट्स दिस इज़ अ प्लेस वेयर पीपल विल थ्राइव इफ यू हैव नॉट कॉपी। If you हुँ, never believe in copy and mugging up all those systems, if you don't believe in, great place to be in। और ये मत सोच के आओ हाँ, करके कि हाँ, अरे यार ये मेरा दोस्त तो मेरे जैसा ही है, मग अप करके आ गया अमेरिका में और मस्त उसका हाँ, जॉब हाँ। वॉब लग गया। भाई बहुत कांड होते हैं इधर। 10 में से 1 आदमी जो मग अप किया हुआ होता है वो निकलता है, ठीक है? वो 10 हुँ, के हुँ, 1 हुँ, का रेशो मत लेके चलो। और दूसरा बात हुँ, यहाँ पे ज़रूरी नहीं है सबका फुल टाइम लगे। किसी का कंसल्टेंसी में भी लग जाता है, किसी का नॉर्मली ऐसा जॉब लग जाता है। तो सर्वाइव करने को कुछ भी कर सकते हो बट यू नीड टू सर्वाइव इन योर ओन फील्ड ना। यहाँ पे ना बहुत लोग ऑफशोर जॉब कर लेते हैं जैसे कि गैस स्टेशन में चले गए, हुँ, 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 इधर हुँ, चले हुँ, गए, उधर चले गए, ठीक है? और वहाँ पे उनको फिर भी इंडिया से ज़्यादा पैसा मिलता है। हुँ, हुँ, तो हुँ, उनको लगता है दिस इज़ स्टिल बेटर देन इंडिया। नहीं, हुँ, इट इज़ नॉट बेटर देन इंडिया। आप यहाँ के गैस स्टेशन में काम कर रहे हो, आप यहाँ के मोटल्स में काम कर रहे हो, आप यहाँ के खाने बनाने के इसमें काम कर रहे हो और आप कंप्यूटर इंजीनियर थे इंडिया में। येस, आपको इंडिया से ज़्यादा सैलरी मिलेगा बट यहाँ पे इंडिया से ज़्यादा खर्चा भी है। तो तेरे को लग रहा है कि तू आके हुँ, ये सब भी करके पैसा कमा लेगा तो गलत बात है। तेरा करियर उसके अंदर नहीं है और उससे तेरा दिमाग का ग्रो नहीं हो रहा है। यू आर नॉट लर्निंग समथिंग न्यू। तू लेबर वर्क कर रहा है बेसिकली, राइट? तो अनलेस यू बिलीव कि नहीं यार इसको 1 साल करके मुझे अपनी मेहनत से करियर में करना है, तो दैट विल गिव यू अ लॉट ऑफ फ्रूट। बट इफ यू बिलीव कि यू ओनली वांट टू डू द साइड बिज़नेस एज़ अ मेन बिज़नेस, आई एम सो सॉरी टू टेल यू बट you will hit a wall eventually where you can't grow after that and then you will feel कि यार मेरे peers आगे जा रहे हैं। अब मैं 30 साल का हो गया हूँ, मैं मोटल में ही काम किया, मैं सिर्फ़ गैस में ही काम किया, 5 साल हो गया मास्टर किए हुए और मैं कुछ जॉब वॉब नहीं कर रहा हूँ, मेरे करियर से रिलेटेड। मेरा वीज़ा भी खत्म होने वाला है। जब इंडिया वापस जाएगा तो देखेगा कि 30 साल के तेरे लौंडे-वोंडे सब 40-40 लाख रुपए कमा रहे हैं और तू आज भी 10 लाख में बैठा हुआ है। और कोई तेरे को पूछेगा इंडिया में करके कि तुम क्या करके आए वहाँ पे? तो ये बोलोगे हम बर्तन धो के आए। तो कौन जॉब देगा तुमको फिर इंडिया में? नहीं देगा ना। तो ये आइडिया मत लेके आओ करके कि यहाँ हुँ। पे सिर्फ़ पोस्ट वर्क करके हम लोग जी लेंगे। वो भी इज़ एन ऑफ आइडिया। बिल्कुल। और मैंने आपका वो देखा था, मतलब एक रील पे देखा था, शायद आपने भी पांडा एक्सप्रेस पे काम करा था करेक्ट, फॉर करेक्ट। व्हेनेवर यू मैंने वर। इसलिए मेरे को इतना एक्सपीरियंस है मैं बता रहा हूँ। मैं हाँ, हाँ। पांडा एक्सप्रेस में काम किया हूँ, मैंने बर्तन धोए हैं यहाँ पे, मैंने पोछा लगाया हुआ है यहाँ पे, मेरे कैंपसेस के अंदर। मैंने वो हर चीज़ की है जो करनी चाहिए सर्वाइवल के लिए। लेकिन कभी भी मैंने उसको करियर नहीं बनाया।
हर दिन अगर अब पैसा नहीं है ना, हम लोग अब हुँ, यहाँ हुँ, पे मैं हुँ, हुँ। मास्टर करने के लिए भी कैसे आया था पता है तेरे को? लोन ही नहीं मिला मेरे को। मेरे को लोन नहीं दिया किसी ने। मेरे पापा का क्रेडिट बहुत खराब था। ओके। पहले लोन लिए हुए थे, पे नहीं किए उन्होंने। तो अब लोन नहीं दे रहा है कोई मेरे को। मम्मी काम नहीं करती थी, हाउसवाइफ थी। उनके नाम पे भी लोन नहीं मिलेगा। तो अब क्या कर सकते हैं? तो अब मेरी बहन, मेरे रिलेटिव्स मेरे फ्रेंड्स सब लोग मिलके पूल किए पैसा। अब उन सबको मैं क्या करता था कि मैंने एक रिज़्यूमे बना लिया था मास्टर्स के लिए, मास्टर्स के पहले। मैंने बोला करके कि देखो ये मेरा रिज़्यूमे है। मैंने ऑलरेडी इंडिया में खुद का स्टार्टअप भी बनाया है। मैं एथिकल हैकर भी रहा हूँ। मैंने इंस्टीट्यूट में पढ़ाया भी है। मैं हैकाथॉन्स भी जीता हुआ हूँ। मैं न्यूज़पेपर में भी आया हुआ हूँ। मैं रेडियो में भी आया हुआ हूँ और मेरे सॉफ्टवेयर कई लोगों को मैंने बेचे विथ गुड अमाउंट ऑफ मनी। तो मेरे को स्टार्टअप भी बनाना आता है। मेरे खुद के स्टार्टअप भी रहे। अगर इतना कैलिबर लेके अगर मैं अमेरिका जाऊँगा तो मैं कुछ ना कुछ कर ही लूँगा। आप बस मेरे पे भरोसा करके मुझे मेरे मास्टर के लिए पैसा दे दो। पहली बार आप ये किसी को पिच करते हो ना तो ना ही बोलता है वो आदमी। हुँ, तो उस हुँ। टाइम गिव अप थोड़ी करोगे आप। फिर आप दूसरे के पास जाओगे, फिर आप तीसरे के पास जाओगे, फिर चौथे के पास जाओगे। तो धीरे-धीरे करके कोई ना कोई 10 में से 1 आदमी को लगेगा करके कि ये इन्वेस्टमेंट वर्दी आदमी है। इसको पैसा दिया जा सकता है और ये जीत के आएगा। ऐसे मैंने काफ़ी लोगों को कन्विंस करने का कोशिश किया। मैंने बहुत सारे छोटे-छोटे पॉकेट्स में लोगों ने मेरे में इन्वेस्ट किया एंड देन मैंने एक कॉपी लिखी। कॉपी के अंदर मैंने जितने लोगों से पैसा लिया था, उन सबका नाम-वाम लिखा कि हाँ, इतने लोगों ने मुझे पैसा दिया है। माय सिस्टर गिव मी समथिंग, माय फ्रेंड गिव मी दिस। एक दूसरा एक आदमी था मार्केट में जो पैसा देता था, दिस गिव मी समथिंग। देन एक इन्वेस्टर गिव मी दिस। देन some came from my relatives. I wrote all of that down, right? And then I made sure कि जैसे ही मेरा मास्टर खत्म हुआ, the first thing I'm gonna do is pay all of them back. बट इवन विद दिस राइट, बैंक में गया मैं, मेरे को स्टूडेंट लोन के लिए मैंने अप्लाई किया। तो स्टूडेंट लोन में देयर इज सिंस आपका बहुत अगर अच्छा जीआरई स्कोर नहीं है ना, दे वोंट गिव यू क्या बोलते हैं, विदाउट अ गारंटर दे विल हुँ, नेवर हुँ, गिव यू हुँ। लोन। अब मेरा गारंटर ही एकदम लगा हुआ है तो मैं, वो मेरे को मेरे स्कोर पे भी नहीं लोन देंगे, समझ रहे हो? तो मेक श्योर टू थिंग्स एक्चुअली, ग्रेट एडवाइस मेरे को अगर कोई बताता ना ये बात, तुम लोग भी अपने पापा से बात करना। कभी भी फ्यूचर में अगर मास्टर करना चाहते हो या पढ़ाई के लिए जाना चाहते हो बाहर, मेक श्योर तुम्हारे लोन्स क्लियर्ड है, ठीक है? हुँ, एनओसी हुँ। लेके रखो। पापा को बोलो पापा ये छोटी बात नहीं है। अगर आपने कार का भी लोन लिया है, उसका एनओसी लो। अगर आपने पे नहीं किया तो उसे पे करो। आपका हुँ, क्रेडिट हुँ। स्कोर अच्छा करो। 'कॉज़ अगर आपके पास एक भी आपका रिलेटिव एज़ अ गारंटर की तरह खड़ा नहीं होगा, तो आपको लोन हुँ। नहीं मिल सकता। तो ये पापा से आज बात करो तुम लोग कि मेरा क्या स्टेटस है, आपका क्रेडिट अच्छा है कि नहीं है? आपका सिबिल अच्छा है कि नहीं है? सिबिल इंडिया में हुँ, हुँ, सिबिल हुँ। होता है, हमारे यहाँ पे क्रेडिट होता है। आपका सिबिल अच्छा है कि नहीं है? ये सब एकदम मैच्योरली बैठ के बात करो आज, ठीक है? हुँ। और अपना करियर बनाने के पहले, चालू करने के पहले मेक श्योर योर पेपर्स आर अलाइन्ड। बहुत आज के आप डिजिटल वर्ल्ड में रहते हो, इफ एनी मिस्टेक हैपन यू विल बी ब्लॉक्ड। एंड देन मेरे जैसा फिर तुम लोगों को स्ट्रगल करना पड़ेगा, हर गली-गली में घूम-घूम के भीख माँगो। कौन देगा, कौन नहीं देगा पता नहीं। तो उस हिसाब से करना। मेरे को बहुत स्ट्रगल हुआ था ये सब करने में, तो डोंट गो थ्रू माय वे, हुँ। go through loans and proper bank channels. I had to survive with various means to make sure I can make in life. कुछ फिर मेरा स्कॉलरशिप भी लग गया था थोड़ा, तो ओके। स्कॉलरशिप का पैसा मिल गया। फिर मुझे इधर से थोड़ा पैसा मिल गया, थोड़ा एक 3 लाख रुपए बैंक से मिल गया, 5 लाख रुपए स्कॉलरशिप का हुँ। मिल गया। तो इससे पहला सेमेस्टर का फी निकल गया। फिर दूसरे सेमेस्टर के लिए मेरे को एक इन्वेस्टर्स के पास जाना पड़ा। तीसरे सेमेस्टर के लिए मुझे एक रिलेटिव के पास जाना पड़ा। चौथे सेमेस्टर के ऊपर मेरी बहन आ गई। ऐसा कर के आई हैड टू सर्वाइव। फिर ओके। इसमें आप पढ़ाई पे कैसे ध्यान दोगे ना, इतना स्ट्रेस रहता है हुँ, बॉडी हुँ, पे। हुँ। उसके बाद अब मेरे पास पैसा भी क्या है? मेरे पास पैसा किस चीज़ का है? मेरे पास कॉलेज का फी पे करने का पैसा है, राइट? अब कॉलेज का फी पे करने का पैसा है, उसका मतलब ये थोड़ी कि बस खाने का पैसा है। खाने का हुँ। पैसा भी लगता है, पानी पीने का पैसा भी लगता है, रहने का भी पैसा लगता है, बिजली का भी पैसा लगता है, इंश्योरेंस का भी पैसा लगता है। तेल का पैसा लगता है, सब कुछ का पैसा लगता है। आप क्या करोगे? फिर आपको ऑफ आई हैड टू वर्क ऑन कैंपस। मुझे काम करना पड़ा टू मेक श्योर मैं झाड़ू लगा दूँ, बर्तन लगा दूँ, कुछ भी लगा दूँ, बट कैसे भी करके आज रात की रोटी का पैसा निकल जाए। तो फिर मैं वहाँ जाता था, हफ्ते में आई थिंक 20 घंटा काम करता था। तो 2-2, 2-2, 3-3, 4-4 घंटा करके करता था। उसके बाद खुद का पढ़ाई करता था, फिर क्लासेस जाता था, फिर थोड़ा बीच-बीच में इधर-उधर से टैक्सी चलाकर आजू-बाजू में पैसा कमा के रेंट निकाल देता था। फिर फर्स्ट ईयर के बाद वीज़ा खुल जाता है आपका अमेरिका में।
वीजा खुल जाता है तो यू कैन डू लेजिट इंटर्नशिप्स। तो मैंने ओके। जैसे मैं इधर अमेरिका में लैंड किया था ना, उसके मतलब 4 दिन के अंदर-अंदर ही मैंने सब लोगों को मेल भेजना चालू कर दिया था कि देखो मेरा जैसे ही मैं बहुत अच्छा कोडर हूँ, मैं ऐसा मस्त सॉफ्टवेयर बना के दूँगा ना, तो अभी आपका दो पूरा प्रॉफिट डबल कर दूँगा। आप बस वेट करना मेरे वीज़ा के लिए, हाँ। तो ऐसे भेज-भेज के मैंने जितना हो सकता था कोल्ड ईमेल क दिस इज़ नोन एज़ कोल्ड ईमेल, वेयर यू मेक पीपल रीड योर मेल, एंड द वे you make people read your mail is you target their like emotional stuff. It's like, I know you're losing your profit. I can help you out. I'm a great coder. These are my projects. I can help you out. ऐसा करेंगे ना तो 1000 स्टार्टअप में 2-4 स्टार्टअप ये सब पढ़ लेता है, and then they're ready to give you things. So by the time मेरा फर्स्ट ईयर अमेरिका में हुआ था, घिसते पढ़ाते मैंने इंटर्नशिप ले ली थी, and then I started my internship which paid well for my education funds, my own funds and everything. तो लाइफ बहुत टफ होता है, you have to do all these things. Make sure you're more prepared, make sure you are ready to take these kind of challenges when you're in America. It's not an easy spot. Life will throw you out, just like me, who went to the class with 50 of his peers, and by the next week 95% of them are gone, are in court, or someone is flying back to India. आपका दिल खराब हो जाता है, आपको नहीं पता कि ये लोग 40 बच्चे नहीं कर पाए, मैं क्या कर लूंगा, ऐसे थॉट्स आने लगते हैं। मार्केट से आपने इतना पैसा उठा लिया है, पापा का इज्जत, मेरा इज्जत, हम लोग ऑलरेडी गरीब है, साले इससे ज्यादा गरीब क्या होंगे, ये सब थॉट्स के साथ पढ़ाई करना टफ होता है। तो आप बहुत मेंटली स्ट्रांग होके आओ इधर, अगर आप ऐसे सिचुएशन पे हो। और अगर आप ऐसे सिचुएशन पे नहीं हो, तो फिर मेक श्योर यू शुड हैव नो रीजन टू से कि मैं सक्सीड नहीं कर सकता। तेरे पास समय ही समय है पढ़ने के लिए, सिर्फ पढ़ने पे ध्यान दे। हम जैसे लोग बिल्कुल। अगर स्ट्रगल करके फेल हो जाते हैं ना, तो दुखता भी है साला कि हाँ यार बहुत ज्यादा मेहनत किया, इतने प्रेशर के बाद नहीं कर पाया। तो हम लोग उनको थोड़ा लीवे भी दे देते हैं। लेकिन तुम लोगों के पास अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है, पापा अच्छा काम कर रहे हैं, लोन मिल जाएगा तुम लोगों को, तो इधर आके अगर तुम लोगों ने मस्ती की, नो वन विल फॉरगिव यू। रिमेंबर दिस एंड मेक श्योर यू डू योर ड्यू डिलिजेंस। ये बताओ, आपने जैसे एक एक रील में आपने वही बताया था कि आपका जो स्कूल का एकेडमिक्स था उसमें भी आप इतने अच्छे नहीं थे, आपके भी मतलब ऐसा होता है ना कि वो लोग सोचते हैं कि जो माइक्रोसॉफ्ट गूगल में होते हैं ना लोग, वो होते हैं कि भाई जिनके 10th 12th में 95% 99% ऐसे आए हैं। तो भाई अबे ये काश मैं तुमको मतलब मेरा मार्कशीट दिखा हुआ था। तू हंस-हंस के मर जाएगा। मेरा एक्चुअली यू नो व्हाट, यू शुड पुट दैट। मैंने इंस्टाग्राम पे डाला हुआ है मेरे मार्कशीट्स, ताकि हाँ। मैं लोगों को इंस्पायर कर सकूं कि भाई कुछ नहीं है, 60%, 40%, 30% उठा लोगे तुम लोग, जिंदगी उठाना होगा तो। तो इफ यू गो एंड सिंस नाउ लुक एट माय सिनेरियो, राइट, मैं 15 साल से इथिकल कर रहा हूँ, मैं प्रोफेसर्स को पढ़ा चुका हूँ, है ना? तो जब मैं इंजीनियरिंग के लिए जा रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ करके कि एक तो फर्स्ट ईयर इतना फालतू होता है, सब लोग का सब्जेक्ट कॉमन क्यों है? मेरे को मैकेनिकल सीखनी नहीं है, मेरे को नहीं सीखना टी जॉइंट वी जॉइंट, अरे नहीं सीखना है भाई, मेरे को कंप्यूटर चाहिए। तो फर्स्ट ईयर में I was like, ki, this is so stupid. This is just bizarre. Why am I learning this? And I'm like, ki, I know practical. This is what is required for me to get a job. I will focus on that. And then I kept on cracking hackathons. I kept on cracking those things. तो मैं ज़्यादा पढ़ाई वढ़ाई लिखाई में ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। टर्न्स आउट मेरा जो लोगों ने मारा है, एक तो मैं 80% ऑफ द टाइम कॉलेज में नहीं जाता हूँ, ठीक है? 80% ऑफ द टाइम मैं घर पे बैठ के कोडिंग कर रहा हूँ। फिर मेरी मम्मी को कॉल आता है करके कि आपका बच्चा कॉलेज नहीं आ रहा है। अरे मेरा बच्चा मेरे सामने बैठा हुआ है। वो कहीं बाहर नहीं गया हुआ है भाई, वो इधर काम ही कर रहा है। तो अब फैकल्टी का बन का हुआ है, तो उन्होंने मेरे को सारे इंटरनल में 0 दे दिया, ठीक है? दूसरा मैं जाके लड़ लेता हूँ। मैं क्या करता हूँ करके कि एक प्रोफ़ेसर ऐसा पढ़ा रहा है, तो वो मेरे को ऐसा सिखा रहा है, मैं बोल रहा हूँ उनको कि सर आप जो सिखा रहे हो अच्छा सिखा रहे हो, बट इसको मैं इस तरह से इससे भी तो सॉल्व कर सकता हूँ ना। तो जैसे 2 + 2 = 4, है ना? 3 + 1 = 4 2, है ना? 1 + 1 + 1 + 1 = 4 2, है ना? 4 ही तो लाना है। अब बबल सॉर्ट यूज़ करूँ या हीप सॉर्ट यूज़ करूँ, क्या मैटर करता है? तो आपका सॉर्ट ही तो करना था। नो, नो, दे आर लाइक नो, 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 वी ओनली थॉट इन दिस कॉलेज, वी ओनली थॉट दिस टेक्निक, सो ओनली यू शुड डू दिस टेक्निक ब्रो। इंडस्ट्री में नहीं चल रहा है वो भाई, देयर इज बेटर वे टू डू दीस थिंग्स, है ना? तो आई एम लाइक, मैं उनको ऐसा बोलता था कि आई अंडरस्टैंड आपका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, बट आपका ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि इंडस्ट्री में क्या चल रहा है वो भी सिखाओ। बड़े कॉलेजेस तो करते हैं ना, अपन क्यों नहीं कर रहे? तो वहां पे ऐसा भनक जाते थे लोग। बट अब
थोड़ा गैप भी था। उनको लग रहा था कि मैं ऐसा इविल स्टूडेंट हूँ, मैं रेबल स्टूडेंट हूँ, मैं कुछ ऐसा तो वो कर रहा हूँ। नहीं भाई, मैंने देखा हुआ है काम वाम पहले का, तो मैं ऐसे ही बता रहा था कि मेरे साथ के दोस्त लोग भी नया नया चीज सीखे। तो उसके लिए मैं स्टार्टिंग में मेरे को फेल कर देते थे। तो उनको और मेरे को साथ में आने के लिए थोड़ा सा समय लगा। जब उनको पता चला कि मेरा पर्सनालिटी कैसा है, कि आई जेन्युइनली फील लाइक कि अब जब जब आप जेन्युइनली उनको बोलते हो ना करके, यार देख, और टीचर भी अच्छे लोग होते हैं। व्हाट हैपेंस विद टीचर्स इज, इतने साले देयर आर सो मेनी बैड पीपल इन इंजीनियरिंग, राइट? किसी को पढ़ना वढ़ना नहीं है, बस ऐसे ही आ गए इंजीनियरिंग करने के लिए। अब वो लोगों को पढ़ाते पढ़ाते ये लोग भी ये हो जाते हैं कि पत्थर हो जाते हैं कि यार क्या नया चीज सिखा रहे हैं, जो चीज सीखना है वही सीख। तो इट टेक्स सम टाइम टू आई टू ब्रिंग माई सेल्फ टू देम एंड लाइक चेंज दिस सिस्टम, कि नहीं, पढ़ने के लिए नहीं आए, अपन मिलके चीजें नई नई बनाएंगे, है ना? नया नया चीज करेंगे, नया नया चीज सीखेंगे, हैकिंग वैकिंग करेंगे, नए प्रोजेक्ट बनाएंगे, अपने सारे बच्चों को इंटर्नशिप दिलाएंगे सेकंड ईयर में, सब जाके कॉलेज में ये करेंगे, आईटी सी का डिपार्टमेंट सबसे ऊपर कर देंगे। तो उनको जब ऐसा दिखा कि नहीं, ये बच्चा हरामी नहीं है, अच्छा मेहनत करना चाहता है, देन दे कनेक्टेड वेल विद मी, देन आई बिकेम देयर बेस्ट स्टूडेंट। कि ये भले ही मार्क्स ना लाता हो, लेकिन इसको जो आता है ना, वैसा कोई नहीं कर सकता। द वे ही राइट सॉफ्टवेयर, द वे ही नोज कंप्यूटर साइंस, नो वन नोज इट। एंड दैट made my marks go from, I think I was 50%, 50 percentile passing with grace, to my final year which was distinction. मैं distinction में पास हुआ, best. And by the last year, since आप more and more computer science के पास चले जाते हो, मेरे मार्क्स और बढ़ते गए, बिकॉज दिस इज माई फील्ड। आप मेरे टेरिटरी में आ गए हो। अब मैं टी जॉइंट नहीं बना रहा हूँ, अब मैं बताता हूँ तुम लोगों को मैं क्या चीज हूँ। तो ऐसे कर करके मैंने जो एग्जाम फाड़े आखिरी के इसमें, तो उनको भी लगा ये साला क्या फोड़ रहा है ये, तो वो लोग और इंस्पायर होते गए। तो फिर आखिरी में मेरा, आई वेंट फ्रॉम 50% to close to closing at like 9.0 GPA, 8.9 something like that GPA. Oh, And nice. this was distinction degree, not even first class. So I went from passing with grace to a distinction, and I was very proud of it. So system will work for you if you make that system work for you, है ना? अगर कोई टीचर नहीं समझ रहा है, उसके घर के सामने बैठ जाके, नहीं नहीं आप मेरी बात समझो, मैं ये बताना चाहता हूँ, ये ऐसा ही होगा। कुछ क्या करेगा, मार थोड़ी देगा तेरे को, समझेगा कभी ना कभी तो तेरी बात। चेंज करना क्या फर्क पड़ता है, पैसा दिया है भाई। और जब आप हैकाथॉन जीत जीत के पैसा देके आ रहे हो ना, मैं नहीं सुन सकता हूँ करके कि ओ यू वोंट लर्न माय मेथड। नहीं नहीं, आप समझो मेरी बात। मैंने बहुत मेहनत से पैसा कमाया है। आप ऐसा मत बोलो करके कि 2 मार्क दोगे। अरे मेरा आंसर तो समझो, अच्छे वे में आंसर दे रहा हूँ कि किताबों में लिखा हुआ आंसर सही है, बट उसका बेटर आंसर भी है। और अब मेरे को बता दो गूगल करके कि आंसर गलत है, तो मैं, आप मेरे को दे देना 0 मार्क्स, फिर बिल्कुल मेरे को दरकार नहीं है मार्क्स का। आप बस ये मत बोलो करके मैं रट्टा करके हूँ, मुझसे रट्टा नहीं होता है। मैं समझ के आता हूँ ना, आप मेरा आंसर तो देखो एक बार। फर्स्ट ईयर में दोबारा भेजता हूँ नागपुर में, ठीक है। फर्स्ट हम्म सेकंड ईयर मतलब वो स्ट्रगल वगैरह नहीं। अगर हम्म नॉर्मल एक स्टूडेंट है, आपको उसके फेज में भेजता हूँ फर्स्ट सेकंड ईयर में, एंड हम्म आपको यहाँ पे आना है माइक्रोसॉफ्ट हम्म रेडमंड ऑफिस में, ठीक है, एज हम्म सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो उसका क्या पाथ होगा, मतलब कोई अगर फर्स्ट या सेकंड ईयर में हमारा कोई स्टूडेंट देख रहा है, तो उसको आप क्या रिकमेंड करोगे कि ये चीज़ें फॉलो कर, तो तू आ ठीक है। सकता है यहाँ पे। तो मैं फर्स्ट ईयर में हूँ क्या? हाँ फर्स्ट ईयर मान लो आप। कौन सा डिपार्टमेंट है मेरा? सीएसई। सीएससी, सीएसई ऑलराइट। ईसी अब तो ज़्यादा डिफरेंस ज्यादा रहा नहीं डिफरेंस है। रहा भी नहीं। तो हम्म इफ योर एम इज टू बी इन माइक्रोसॉफ्ट, राइट, और एनी फैंग कंपनी, I would ask myself why I am going there. Am I going there to just earn money, or am I in a place where I want more challenges in life, something where no one can give it to me, right? So these two questions will give you two different path. First question will lead you to, what does the company want? What if Microsoft can give me so many challenges, am I even strong enough to solve those challenges, right? And then if you go कि मुझे सिर्फ पैसा चाहिए, right, then you don't have कि यार वो मुझे पैसा क्यों देगी, है ना? दो, वो क्वेश्चन और ये क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, बट तो दोनों का कंक्लूजन अगर तू देखेगा ना, तो क्या निकलेगा? वो मुझे पैसा क्यों देगी जब मैं उनका बहुत बड़ा कोई चैलेंज सॉल्व कर सकता हूँ, है ना? और अगर मुझे काम पसंद है, मुझे पैसे से ज़्यादा काम ज़्यादा पसंद है, और मुझे काम चैलेंजिंग चाहिए, एंड माइक्रोसॉफ्ट के पास चैलेंजिंग काम है, तो मैं ये सोचूँगा करिए कि उनके पास चैलेंजिंग काम क्यों है, राइट? कोई चीज़ पे वर्क कर रहे होंगे वो, कोई टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे होंगे वो, व्हिच मेड देम हैव सच अ चैलेंजिंग वर्क।
both will lead to Microsoft want to solve some challenging work. Now, Hmm. how can you make useful to a company who wants to solve challenges and will pay you to solve those challenges by able to like being able to solve those challenges, right? So you start making yourself um, building yourself in a way that you can solve challenges of these big enterprises. हर कंपनी के challenges भी अलग अलग होते हैं, है ना? Hmm. तो if you're trying to figure out, for example, एंड डोंट, इंडिया में तुमको ऐसा फील होगा करके कि इंटरव्यू क्वेश्चंस आर जस्ट अबाउट कि ये ग्लास से पानी निकाल के इधर डाल दिया तो कितना समय कितना लगेगा, वो सब नहीं होता है चैलेंजेस। रियल वर्ल्ड Hmm. चैलेंजेस आर कि देख मेरे पास 10 कंप्यूटर है, ठीक है? 10 कंप्यूटर में मैंने लैन से जोड़ दिया है। अब मेरे को 1 लाख कंप्यूटर को लैन से जोड़ना है, तो क्या सॉल्यूशन है उसका? क्या लैन इज़ द राइट थिंग? क्या वीनेट इज़ द राइट थिंग? क्या मैं इनको वर्चुअली इंटरनेट से कनेक्ट कर दूँ? या ऐसा कोई कोड लिख दूँ जिससे वो सब एक साथ कनेक्ट हो जाए? तो वन्स यू अंडरस्टैंड द बिज़नेस एप्लीकेशन, यू अंडरस्टैंड व्हाट द कंपनी वांट्स। तो जब आप उस चीज़ के लिए पढ़ाई करना चालू करते हो ना, एंड व्हेन यू गो अप एंड इन द इंटरव्यूज़, दे विल आस्क यू these type of like system design questions. They will ask you like, कैन यू मेक ट्विटर, कैन यू मेक टिकटॉक, कैन यू मेक दीज थिंग्स। तब वहाँ क्वेश्चन ये नहीं पूछा जाता है करके कि इस ग्लास में 2 ग्लास का पानी है, इसको ऐसा मिक्स कर दो और बताओ 2 ग्लास का पानी में कैसा। अरे ये सब क्वेश्चन वो पता नहीं क्या ही क्वेश्चन पूछते हैं इंडिया में। ये सब क्वेश्चन कंपनी से रिलेटेड ही नहीं है। व्हाई एम आई लर्निंग दीस क्वेश्चन? सो Hmm. लर्न टू आंसर क्वेश्चंस व्हिच आर चैलेंजिंग एंड पीपल विल पे यू टू सॉल्व दोस चैलेंजेस। Once you find that, then you have a clear path forward. Giving you an example for Microsoft or Facebook or Google, Hmm. what do they want? They want someone who can write code which can scale up, which can be Hmm. efficient, which can be rapid, which can deploy really fast, right? These are few things. Second things what they're looking for in the age of AI. सबके पास AI है तो coding थोड़ा easy हो गया है. How do you manage these projects? How do you manage communication between teams? How do you manage to develop an app without being Hmm. blocked all the time, right? What Hmm. are these questions? These questions are telling you people communication होना चाहिए। These questions are telling you कि यार मुझे मैनेजिंग करना आना चाहिए। These questions are telling you मुझे कोड करना आना चाहिए। These questions are telling you मुझे सिस्टम डिजाइन आना चाहिए। अगर ये सब चीजें आता है ना तो कोई भी आदमी जॉब दे देगा। देयर इज नो रीजन कि तेरे को जॉब नहीं मिले। मेरे पास एक चैलेंज है, मेरे पास बहुत पैसा है, मेरे को चैलेंज सॉल्व करने का है, तू ये चैलेंज सॉल्व कर पा रहा है तो मैं दूंगा ना तेरे को पैसा। मैं Hmm. इधर कहाँ ब्लॉक आ रहा है? कोई ब्लॉक ही नहीं है। तो यही बात है। जस्ट कीप योरसेल्फ इन द कंपनी शू एंड आस्क योरसेल्फ, मैं अगर ये कंपनी होता तो मैं हायर करने के टाइम पे किन लोगों को लेता? दैट सॉल्व्स योर क्वेश्चन। तो अगर मैं सेकंड ईयर में हूँ, फर्स्ट ईयर में हूँ, मैं वहां से चालू करता by understanding what these companies want and then start preparing for it. They want system design, Hmm. I'll prepare for it. They want coding, I'll prepare for it. They want me to learn how to communicate, I'll prepare for it. Once you start doing these things, you land up in a place जहाँ पे तेरे को जॉब मिलेगा ही मिलेगा। कोई Definitely. कोई तेरे को मैथ्स का फॉर्मूला नहीं पढ़ने का है, कोई तेरे को Hmm. वो कौन क्या यार, व्हाट आर दीज क्वेश्चंस दे यूज्ड टू आस्क इन लाइक इंटरव्यूज कि आप ऐसा टू कुछ तो ऐसा क्वेश्चंस का याद है कि आपने वो ऐसा एप्टीट्यूड टेस्ट Hmm. देते थे, उसके बाद इंटरव्यू के लिए आना बोलते थे, व्हाट अ फक ऑल थिंग ब्रो, कौन करता है ये सब? तू कौन सी कंपनी में जाएगा, तेरे को एप्टीट्यूड टेस्ट का कोडिंग करना है? नहीं करना है। दीज आर नॉट द क्वेश्चन Hmm. यू आर सपोज्ड टू आंसर। व्हाई आर यू इवन लर्निंग फॉर इट? दीज क्वेश्चंस विल ओनली टेक यू टू अ कंपनी जो सर्विस करता है, जिसका काम है Hmm. मास हायर करना, जिसका काम है बच्चों को ले लो और उनका नाम से साला कॉन्ट्रैक्ट उठाओ अमेरिका से। वो कंपनी में रहना चाहता है तू? नहीं रहना चाहता है ना, तो Hmm. ये सब मत सीख। वो चीज सीख जो जो इन फालतू कंपनियों को पैसा देती है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, फेसबुक, ये लोग क्या करती है? इंडिया के टीसीएस और इन लोगों को, कंपनीज को पैसा देती है ना? गुड Hmm. कंपनी, जस्ट पिकिंग ऑन टीसीएस, आई डोंट नो व्हाई, बट ऐसे बहुत सारी Hmm. सर्विस कंपनीज है बिसाइड टीसीएस जिनको अमेरिकन कंपनी प्रोजेक्ट देती है, और कोई भी कंपनीज, इंडिया की खुद की कंपनीज उनको प्रोजेक्ट देती है। और ये लोग वो प्रोजेक्ट्स कैसे उठाते हैं? हमारे पास 3000 बच्चे हैं, हम 3000 कोडर को लगा देंगे आपको काम करने के लिए। उसमें से 100 लोग काम करते हैं, बाकी के 2000 बच्चे बेंच पे बैठे रहते हैं। क्या करेगा वहां पे जाके काम करने के लिए? वो उस चीज पे Hmm. प्रिपेयर कर ही मत। सिर्फ Hmm. टॉप 100 कंपनीज पकड़, उनको कौन से चैलेंजेस है वो सॉल्व कर, ऑटोमेटिकली तू केपेबल बन जाएगा। बात ही खत्म हो जाता है। डेफिनेटली। और बताऊँ क्या एक चीज़ और होती है, जैसे लोग सोचते हैं ना कि ये खाली बिग टॉप कंपनीज हैं वो ही हम्म हैं। हम्म मैं कहता हूँ कि अगर तुम्हें ठीक है उधर एक लिमिटेड रिसोर्स भी हो गया है, एआई चैलेंज भी आ गया है कि वहाँ पे थोड़ी कम हायरिंग हो रही है, क्योंकि जो काम हम या 10 बंदों से कर सकते हैं, हो सकता है वहाँ पे 8 बंदे चाहिए हो आप। या तो ओनली द
जो भाई टॉप 100 कंपनीज है वहां पे नहीं जाना, कोई जो स्टार्टअप्स हैं जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जिनका 100% आईपीओ आने यार, वाला है। कार्तिक क्या बात बोला है तू, सही, यस, 100% स्टार्टअप में जाओ। हाँ हाँ जिसका आईपीओ हो रहा है, जिसका नहीं हो रहा है, स्टार्टअप में फिर भी जाओ। हाँ स्टार्टअप हाँ में हाँ जितना हाँ। आप सीखते हो ना, उतना कोई बिग टेक नहीं सिखा सकता आपको। बिग टेक क्या होता है, हम्म। आप लाखों लोगों के बीच में, जैसे भी आप गूगल ले लिया, फेसबुक ले लिया, हम्म, माइक्रोसॉफ्ट ले लिया, हम्म, हम लोग क्या 300 के पीपल का डेवलपर्स ग्रुप बैठा हुआ है, ठीक है? हम्म, उसमें आप एक ऐसी जगह जुड़ते हो जो सबसे छोटे से छोटे से छोटा-सा गियर जो रहेगा ना, हम्म, उसको आपको हम्म, मेक श्योर करना है कि ये गियर एकदम बढ़िया घूमे, बेस्ट घूमे। ऐसे हम्म, 3 लाख गियर होंगे। सब लोग एक-एक डेवलपर लेके बैठा हुआ है। सब मेक श्योर करते हैं कि ये यार ये गियर एकदम बढ़िया घूमना चाहिए, तभी मेरे को माइक्रोसॉफ्ट का स्टॉक ऊपर जाएगा, राइट? हम्म, लेकिन स्टार्टअप ऐसा नहीं है। स्टार्टअप बोलता है तू ही गियर बॉक्स बना दे भाई, एंड टू हम्म, एंड। और उसमें क्या होता है, आपको जो नॉलेज मिलता है, या छोटा गियर हो या बड़ा गियर हो या साइकिल का चक्का हो या साइकिल का हैंडल हो, आप सब बनाते हो। डेटाबेस से लेकर, आप स्केल अप सॉफ्टवेयर से लेकर, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर, कनेक्टिविटी से लेकर, गेटवे से लेकर, लोड बैलेंस से लेकर, पाइथन के स्क्रिप्ट लिखना, सी शार्प के कोड लिखना, स्केलिंग अप द फ्रंट एंड, स्केलिंग अप द बैक एंड, ये सब करते हो आप। समझ रहे हो आप? ये सब करने के बाद आपके पास जो नॉलेज है, वो एक फुल स्टैक का नॉलेज है, व्हिच मीन्स हम्म, डज़न्ट मैटर इन एनी कंपनी यू जॉइन, तू माइक्रोसॉफ्ट के कोई भी गियर पे भी जुड़ेगा ना, तो भी तू अच्छा परफॉर्म करेगा। हम्म, तो अब इंटरव्यूज जब होते हैं माइक्रोसॉफ्ट के, फैंग के और ये सब के, राइट? ये कोई भी गियर की टीम तेरे को आके पूछेगी करके कि मेरा गियर बता कैसे चलाने का है। तेरे को नहीं आएगा बिकॉज़ तूने वो वाला गियर सीखा ही नहीं कभी। लेकिन स्टार्टअप तेरे को सिखाता है। स्टार्टअप तेरे को छोटा गियर, बड़ा गियर, हैंडल, घोड़ा, साइकिल सब सिखा देता है। तो स्टार्टअप करेगा ना, आई थिंक बहुत बढ़िया नॉलेज खुलता है फॉर फैंग। और मैं बोलता हूँ कि पहले पहले ट्राई ही मत करो फैंग। फैंग, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल पहले अटेम्प्ट ही मत दो। मैं हाईली रिकमेंड करूँगा पहले स्टार्टअप पे जाओ। स्टार्टअप से पूरा सीख लो चीज़ें, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट, गूगल के लिए अटेम्प्ट करो। पहले इसमें अटेम्प्ट करोगे ना, अगर तुम्हारा चले भी जाएगा ना अंदर, तो भी तुमको मज़ा नहीं आएगा उतना। या तुम ऐसी जगह जुड़ जाओगे जहाँ पे तुमको लगेगा क्या गियर ही गियर, एक ही गियर पे बैठा हुआ हूँ मैं। तो तुम्हारा ग्रोथ रुक जाता है। दूसरी बात, वो गियर से अगर हट के तुम कोई और गियर पे लगते हो तो बहुत ऑनबोर्डिंग टाइम लग जाता है। और फिर अगर तुम वो गियर से हट के कोई और कंपनी में जाना चाहते हो तो तुम फेल हो जाते हो। तो हाईली रिकमेंड करूँगा स्टार्टअप कर लो, and then go towards like startup, mid tier, and then big tier. That बिल्कुल। gives you a good growth. Completely on you what you guys want to do, but this is what I would do if I was in the second year of engineering. I will start with startup because that's what I did in India. में जब when I was doing the engineering, I started with a startup. मैं कोई बड़ी कंपनी में नहीं गया पहले काम करने के लिए. I went to a startup. उन्होंने बोला I need this app. I went and made their databases. I made the code. I made the functions. I made the front end. वो सब बनाया मैं जो बनता है, और then I saw कि लोग क्लाइंट को कैसे पिच करते हैं, कस्टमर कैसे उसको यूज़ करता है, किधर लॉग्स गिरते हैं, कैसे एरर हैंडलिंग करनी है, कैसे स्केल अप करना है प्रोडक्ट। ये सब सीखने के बाद जब मैं माइक्रोसॉफ्ट में गया तो आई न्यू एवरीथिंग आई नीडेड टू नो। स्टार्टअप वाला मेरे को लगता है काफ़ी हाँ। लोग, पीपल पीपल व्हेन दे कम बैक टू मी दे आर लाइक, "माधव, लाइक स्टार्टअप इज़ सच अ स्मॉल थिंग। आई डोंट वांट टू बी पार्ट ऑफ समथिंग स्मॉल।" इट्स लाइक, इट्स ओके मैन, लाइफ इज़ लाइक यू स्टार्ट विथ स्मॉल थिंग्स। It's, you think startup is small, but it's massive growth opportunities. Even if it gives you less money, take it. See, मैं अगर 15 साल का हूँ और मेरे को कोई बोलता है करके कि 8,000 रुपये ही मिलेगा आपको पढ़ाई कराने का, टीचिंग बनने का, और मैं उसको बोलता है ये तो क्या फालतू जॉब है, मेरा मेरा तो सीनियर मैंने देखा 3 लाख रुपए कमाता है, मैं नहीं करूंगा ये जॉब। तो आज मैं वो जगह पे ही नहीं होता जहाँ पे मैं हूँ। अगर मैं वो टीचिंग नहीं करता, मेरे को अवार्ड्स नहीं मिलते, मुझे वो कीड़ा नहीं होता, इंजीनियरिंग में मैं स्टार्टअप नहीं करता, बोलता नहीं 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 मैं तो फाइनल ईयर में बिग टेक ही मारूंगा। तो मैं स्टार्टअप में जो चीज़ सीखा हूँ नागपुर में, दैट मेड मी अ बेटर पर्सन, दैट मेड मी बी मोर कॉन्फिडेंट कि नहीं अब तो अमेरिका भी फोड़ दूंगा, बिकॉज यू वेंट थ्रू सो मेनी चैलेंजेस इन स्टार्टअप, राइट? एंड इफ यू एम कि नहीं यार मैं सबसे बड़ा हाथी 1 करोड़ का पैकेज मारूंगा ना, आई एम सो सॉरी टू टेल यू, वेरी रेयर इट हैपेंस, इट्स वेरी रेयर। इट्स अ लैडर माय फ्रेंड्स। I went from 8,000 to 12,000 to 20,000 to 25,000 to 1 lakh to 2 lakh to 3 lakh, now 15 lakh. It's a ladder. I did not go from like 8,000 to भाई आज 20 लाख रुपए कमा रहा हूँ महीना, ऐसा नहीं होता है। You have to go through a ladder. How fast you can go up the ladder is on you. That you can control. But if you jump the ladder, that ladder पे आप पहुंच भी गए 20 लाख के पहले ही स्टेप पे, तो वो स्टेप ऐसा ऐसा हिलेगा, आपको कभी भी डर लगा साला अभी गिरा, अभी गिरा। ऐसा कौन जीना चाहता है डर के अंदर?
अगर आप खुद चढ़ के आते हो ना तो भाई तो कर आज फायर कर दे मेरे को, क्या होगा मैक्स? नीचे वाले लैडर पे चले जाऊँगा, उससे ज़्यादा तो कुछ नहीं होगा। लेकिन 20 लाख के लैडर पे जब आपको कोई क्वेश्चन करता है आपकी एबिलिटीज़ और आप वो लैडर चढ़ के नहीं आए हो, आप ऐसा थम जाते हो। कोई मैनेजर आपको बोल दिया करके वो व्हाट अ फक अप प्रोजेक्ट यू डिड, दिस इज़ नॉट अ गुड प्रोजेक्ट यू डिड। आप क्या करोगे? आप फिर डर जाते हो। आप उसकी सिर्फ़ उसकी बात सुनने लगते हो कि नहीं, नहीं, हाँ, ठीक है, तो जो बोलेगा वो करूँगा। स्लेव बन जाते हो कॉर्पोरेट के। ये इस चीज़ के चक्कर में इंडिया में आई हैव सीन पीपल लूज़ देयर विल टू लिव देयर लाइफ because they're slave of their corporate because sometimes they did not go through the corporate ladder, they directly went from the college to a big tech or any other firm, and they felt ki now if they don't perform they might lose this job and they might never get it again, which make them like oh no, I have to do it, I'm just telling you there is a better path forward. आप छोटे छोटे लैडर पे भी करोगे ना तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता जाता है और छोटे यंग एज से चालू करो। ये चीज़ बताइए जैसे आप कभी आपने इंटरव्यूज़ वगैरह लिए हैं हाँ, फॉर माइक्रोसॉफ्ट? तो कल ही लिया। उसमें अच्छा कल ही लिया है। नाइस, नाइस, नाइस। तो इसमें बताइए कि जैसे आप इंटरव्यूज़ वगैरह लेते हैं, तो उसमें हमारे क कैटेगरीज़ होती हैं। जैसे एक हम स्ट्रॉन्ग हायर देते हैं, हम हायर देते हैं या हम लीन हायर देते हैं या हम नो हायर देते हैं। तो उसकी क्या-क्या चीज़ें क्वालिटीज़ आप देखते हो सामने वाले कैंडिडेट में? I take हुँ, हुँ, interviews हुँ। where I try to break the barrier of lead code, which means I won't ask you questions which is not something you're going to face in your work. हुँ, If, हुँ, like, for example, what I've seen people do these days is they will ask you questions on, or make me this heap sort without using heap sort, or make me traverse this tree using reverse order, or do this dynamic program where you have to know this exact function or exact formula to crack that question. I'm like, have you ever used that function when you go to Microsoft or Google to work? Never. हुँ, You will never use this dynamic programming formula. Then why did you ask this candidate? हुँ, You made him mug up that formula before coming to you because you created this हुँ, environment of like, oh, everyone needs to know certain techniques to solve these questions, right? Everyone needs like, oh, this special technique if you can solve it. It's easy for you to read a question and know the answer directly, but someone who have never seen that question to go to that trick which you just read and understood, this guy would take more than 1 hour to solve that, and you are हुँ, asking हुँ, him to हुँ, solve it in 30 minutes. I think it's unfair to someone who's giving the interviews, right? They have to then mug up a lot of things, and I've always been against mug up. I have fought the system कि मुझे mug up नहीं करना। मैं वो आंसर नहीं दूंगा जो सिर्फ किताबों में लिखा हुआ है। मैं वो आंसर दूंगा जो रियलिटी में लोग कर रहे हैं। रियलिटी में उसका हुँ, वही सोल्यूशन, वही चीज। सो आई टेक इंटरव्यूज लाइक दिस। आई डोंट नो इफ यू विल एंड अप विद मी, सो डोंट हुँ, टेक हुँ, दिस एडवाइस कि आपको यही चीज करनी है। बट द वे आई डू इट इज मैं आपको एक ऐसा क्वेश्चन दूंगा जो आपका क्रिटिकल थिंकिंग टेस्ट करेगा। ये चीज मुझे एक फंक्शन लिख के दिखा जो ये आंसर मैंने तेरे को जो बोला वो लाके दिखा सकता है। ना हुँ, इसमें तेरे को कोई ट्रिक लगेगा, ना इसमें तेरे को कोई मैथ्स लगेगा, बट इसमें क्या लगेगा कि तू इस थॉट को कोड कैसे कर सकता है। मैं तेरे को 30 मिनट देता हूँ, 30 मिनट में तू उसको कर देना। अब मैं क्या पूछूंगा तेरे को, मैं पूछूंगा करके कि मेरे को बता कि ये सोल्यूशन को करने के टाइम पे है ना तेरे को कितना मेमोरी बच सकता था, कितना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लग सकता था, और एकदम फ्रैंकली मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता कि तू सिंटेक्स खराब लिख रहा है कि नहीं लिख रहा है। मेरे हुँ, को कोई प्रॉब्लम नहीं है बिकॉज़ आईडी पे बैठेगा, जब कंप्यूटर पे बैठेगा, तो तू फंक्शन लिखने के टाइम पे कंप्यूटर ठीक कर देगा तेरा फंक्शन का सिंटैक्स। तो हुँ, हुँ, सिंटैक्स हुँ, निकालने में मेरे को डर मत। बिल्कुल सिर्फ हुँ, क्रिटिकल हुँ, थिंकिंग पे ध्यान दे और ऐसा कोड लिख जो मैं समझ सकूँ एक बार में पढ़ के। हुँ, और हुँ, जब तू ब्रूट फोर्स का अप्रोच कर देगा तो बता मेरे को कि और क्या कर सकता है इसको इम्प्रूव करने के लिए। तेरा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? तेरा O ऑफ 1 का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, O ऑफ n स्क्वायर का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। O ऑफ n स्क्वायर का है तो O ऑफ n कैसे करेगा? O ऑफ n से O ऑफ हुँ, n करेगा, हैश मैप यूज़ करेगा, सॉर्टिंग यूज़ करेगा, अलग-अलग टेक्नीक यूज़ करेगा टू सॉल्व इट। ये क्वेश्चंस जो होते हैं ना जिसमें कोई ट्रिक नहीं लगता, जिसमें कोई मैथ का फॉर्मूला नहीं लगता, ये नॉर्मल क्वेश्चंस है। आप कंपनी में चले जाओ, आपको बिग डेटा दे देंगे वो लोग, इसको हुँ, बोलेंगे कि हुँ, तू ट्रैवर्स कर, तो तू कैसे करेगा? उसको एरे में डालेगा, हैश हुँ, मैप यूज़ हुँ, करेगा, उसको सॉर्ट करेगा, उसमें फाइंड करेगा, फिर उसको उस तरह प्रोसेस करेगा कि वो डेटा फ़िल्टर हो सही तरीके से। यही तो होता है कंपनी का काम। हुँ, 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 हुँ। मेरे क्वेश्चन्स ऐसे होते हैं व्हेन आई एम इंटरव्यूइंग, एंड इफ यू आर लकी इनफ, अगर आपको मैं मिलता हूँ, तो ये हुँ, मेरा हुँ, टेक्निक हुँ। है, आप ट्रैक कर लेना, एकदम ईज़ी है, ईज़ी है। बिल्कुल बढ़िया। लेकिन आप कुछ चीज़ें भी देखते होंगे ना कि जैसे ये बंदा ग्रीन फ्लैग है, मतलब आप इंटरव्यू लग रहे हो क्योंकि आपको फीडबैक देना पड़ता है हुँ। व्हेनेवर यू आर टेक इंटरव्यू। सो क्या-क्या चीज़ें आप नोटिस करते हो सामने वाले बंदे में? वैसे मेरे क्वेश्चंस सेम नहीं रहने हुँ, वाले, हुँ। जस्ट लेटिंग हुँ, यू हुँ, गाइस नो, हुँ। इफ यू एंडेड अप विद मी। मेरे क्वेश्चंस ऑलवेज चेंज, इट चेंजेस विद टाइम, चेंजेस विद हुँ, दैट, हुँ, इट चेंजेस हुँ, विद हुँ, इफ आई एम इन एआई वर्ल्ड राइट नाउ, सो आई चेंज हुँ, बेस्ड ऑन हुँ, दैट।
Mhm. Now, if you're looking for what kind of qualities I look for as a person, if I have my own company, the Mhm. qualities I would look for is, do you know AI? How can you use AI today in today's world? What was the last project जो आपने AI से बनाया? How what was the Mhm. programming skills you did? Did you understood when you wrote the code, right? Then second segment would be, do you know वेक्टर्स, डू यू नो रैग, एआई के अगर आप एआई यूज़ किए हुए हो, तो Mhm. एआई के नीचे का फाउंडेशन लेवल अगर आपको पता हो, तो मुझे पता है कि कल Mhm. मेरा एआई फट गया, तो आपको पता है कि Mhm. कैसे करना है या एआई से मिलकर कौन से प्रोडक्ट बनने हैं, राइट? सो व्हाट आई Mhm. एम डूइंग हियर इज़ आई एम अंडरस्टैंडिंग हाउ caught up with the world you are. Can you build up Mhm. products with AI? Can you use RAG? Can you use vector search? Can you use semantic search? Can you use embeddings to like combine this into like a data source? Can you use some foundation model, connect them up, make a product out of it? Mhm. ये मेरे लिए ग्रीन फ्लैग होता है कि इस बंदे ने ये सब किया है, तो ये मेरी हर क्वेश्चन का आंसर दे देगा। अगर कल चल के इसका सिंटेक्स भी खराब हुआ, कल चल के इसका मेरा Mhm. एरेज को ट्रैवर्स करना मतलब बहुत गंदा बात है अगर कोई एरे ट्रैवर्स, Mhm. बट आई एम अज्यूमिंग अगर तू थोड़ा मिस कर दिया, Mhm. डेटा Mhm. स्ट्रक्चर थोड़ा तेरा डीएसए खराब हो गया, तब भी मेरे को चलेगा। लेकिन बिकॉज़ Mhm. तेरे को इंडस्ट्री के साथ तो कॉट अप है। तेरे को पता है कि एआई कैसे यूज़ करना है, एआई के रैक सिस्टम्स क्या होते हैं, एआई कैसे वर्क कर रहा है, एआई से प्रोजेक्ट बना पा रहा है। तो फिर भी Mhm. मैं तेरे को ग्रीन फ्लैग दे दूँगा बिकॉज़ यू नो Mhm. व्हाट द इंडस्ट्री वांट्स राइट नाउ, व्हिच Mhm. मीन्स यू नो यू हैव केप्ट अप। तू रात के 2-2 बजे तक जगा रहा है टू फिगर आउट कि नया चीज़ आया है कुछ मार्केट के अंदर। बिकॉज़ अभी-अभी आया है ना Mhm. ये। बहुत लोग Mhm. कर दिए हैं। बहुत लोग अभी भी पीछे में बैठे हुए हैं। है ना? अभी भी Mhm. कुछ लोग तो अभी भी वो माइक्रो सर्विसेज़ पढ़ रहे हैं। कुछ लोग अभी भी Mhm. काम का है माइक्रो सर्विसेज़, नॉट लाइक यू शुड Mhm. skip it, but now we are in the world of AI. AI can Mhm. do our job 10 times better. Now the Mhm. question is how can you leverage it to build microservices? How can you leverage it to scale up your microservices, right? You have to combine AI with the prior knowledge. And if you're Mhm. just on the prior knowledge, I think then I would have to ask you like DSA and everything. But if you're in the current knowledge, then tells me that okay, this is more important to me than you solving a particular Lead code problem basic something. problem. Yeah, this is more important to me. It's a green flag for me. जैसे मैं जब इंटर्न कर रहा था माइक्रोसॉफ्ट में तो मेरे एक दोस्त से क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है? उससे क्वेश्चन ये पूछा गया था कि तू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यूज़ करता है? उसने कहा हाँ, मैं यूज़ करता हूँ। उसने कहा Mm. तूने एक सेल देखा होगा वहाँ पे, एक सेल होता है। अगर तुझे बोल दिया जाए कि तुझे वो सेल इम्प्लीमेंट करना है, उसमें कौन-सा डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करेगा? और साथ में रीज़निंग कि क्यों यूज़ करेगा? Interesting. तो Yeah. काफ़ी क्रेज़ी क्वेश्चन लगा मुझे ये चीज़ ना। Yeah, तो these are these are fun questions to have. ना मजा आता होगा ना इसको आंसर करने में भी. हाँ, मतलब थॉट प्रो मतलब वो एक तरीके से डिस्कशन में चला जाता है। तुम कोड नहीं कर रहे वहाँ पे। तुम Yeah. इंटरव्यू के साथ प्रॉपर एक डिस्कशन कर रहे हो कि भाई ये ऐसा क्यों होगा? और कभी-कभार ऐसा होता है कि तुम इंटरव्यू से अच्छी अप्रोच बता देते हो। ये भी चीज़ें Exactly. होती हैं। Because that's the more fun part, na? That's हुँ, where the fun comes in when you are with the interviewer, right? And I हुँ, हुँ, really hope. See, the world is not all hubby like me, right? Not हुँ, like you, हुँ, not like Karthik too. Not everyone will give you world हुँ, problems. हुँ, हुँ, It's okay. There's no malice when they don't give you world problems. They might हुँ, give you like हुँ, world hardest question, right? हुँ, It's हुँ, हुँ, don't think that the interviewer was trying to fail you. It could be that the हुँ, interviewer was busy with his own work and he got pulled into to give this interview, right? Take your हुँ, interview, हुँ, and he just openly couldn't like find the last problem and like give it to you, right? So don't हुँ, think you're destined to fail. Think it was just not your time. It could be that it हुँ, was your bad luck that you got that question which you never prepared, right? हुँ, हुँ, Take it as a stab and then like okay, I'll recover from it. I'll learn this question and then come back again. So don't give up. Keep pursuing your dreams. Your stars will align. It just takes time. Mm. हाउ एआई विल टेक ओवर ह्यूमन्स मतलब ये तो I mean, मतलब क्या ही चल रहा no है? debate. There's no debate about it. There What is we no see debate right about it. now is like not even close to what we can achieve. So हुँ, I build copilots in Microsoft, right? So I when I was building the copilot, I know the power of AI as an LLM. So हुँ, for let me give you an example, right? Previously, what used to happen, um, the intelligence, the human intelligence had value, right? Doesn't matter how good you're intelligent or not. Even if you have low IQ, you still have हुँ, some sort of intelligence. You can get work done, right? So we हुँ, had हुँ, हुँ, value in our intelligence. Now imagine something much cheaper comes in the market, a machine which can exactly think like you, right? Then the हुँ, problem हुँ, is, anything you could do, it could do too. So हुँ, any problem which required intelligence, which is like 98% of the world, you can stick an AI to it. Right now,
you're seeing software engineer being impacted the most because Mhm. intelligent work, slap AI intelligence with it, and you can solve software engineering. You will see the same thing happening with robotics. You will see the same thing happening with car. What car does? Mhm. A human who's using intelligence to drive a car, slap AI on it, you have a self-driving car. Mhm. Train, human using like running the trains, slap AI with it, you have a cheap intelligence. Now AI will be autonomous, plain autonomous. So there's like n number of things I can make. Anything you think human is required because of their intelligence can be replaced by Mhm. AI. Now, the question here is, would you be that person? Would you stay home and let AI take your job, or would you work hard to figure out what is the next thing you want to penetrate? Mhm. I'll give you one example. Back in time, when there was no bulbs, when Edison never created a bulb, there were these people who used to go on the streets and used to light lamps. These Mhm. people used to go on each of these like small streets, and they used to like take the candle, and then the candle used to like uh, flame the thingy, the one which gives light, right? So their whole thing was going in the night and just putting that light back on, like the flame. Mhm. When bulbs were invented, these people were like, what are we supposed to do if I don't have to go and light up the bulb, right? Because the bulb is electric, you can just press a button, it just stays on. So thousands and thousands of people had no job in 1 second. Bulb came in, all these jobs went away. Why would I need a light up guy? Why would I need a guy who will flame up these candles when I already have a bulb? What did they do? 95% of them went to the factory which makes bulb. Mhm. We just moved one job to another. You Mhm. should be ready to adapt. If you were writing code, figure out where AI can't do code and then just go and stick there. For example, if you're a software engineer, if you think coding is going to be mostly taken care by the AI, then see what AI can't do, which is scaling up the product, talking to the customer, figuring out what we need, then talk to the AI and build up that product. AI Mhm. won't be able to, AI can write code, but it can't go and build a whole infrastructure for you, right? The whole infrastructure still needs to be done by you. Database needs to be built up. Scaling up needs to be built up. Connection needs to happen. Gateway needs to be done. Load balancer needs to be created. What kind of strategies you want to use? Use AI to power those facilities and then build up, scale your products up, right? This becomes the position where you want to be in. Mhm. Everything can be transformed from your job to a new one. All you have to do is be adaptive enough. When cars were not there, right? पहले घोड़ा गाड़ी चलता था, हाँ, Mhm. तो घोड़ा गाड़ी से जो ट्रैश निकलता था ना, उसको साफ करने के लिए रोज लोग निकलते थे कि हमको ट्रैश साफ Mhm. करना है, सड़क पे गिर गया है। जब पहली बार इलेक्ट्रिक मोटर आया और कोई रेसिड्यू नहीं था, दीज पीपल लाइक हमारा तो जॉब ही चले गया, अब हम क्या करें? दे मूव टू कार फैक्ट्रीज। है ना? ऐसा हर जगह देखोगे तुम लोग। बल्ब में हुआ है, हर इंडस्ट्री रेवोल्यूशन में हुआ है। यू जस्ट Mhm. मूव। लेकिन अगर आपने ना बोल दिया, वो लोगों की तरह, "अरे! बल्ब आ गया है, मेरे को तो कैंडल जलाना ही आता है, मैं सिर्फ़ कैंडल ही जलाऊँगा।" तो भाई वो 5% लोगों का हिस्ट्री बख्शता नहीं है। वो 5% लोगों को कुछ जॉब नहीं मिलता है फिर। वो Mhm. 5% लोगों में नहीं रहने का है अपने को 95% लोगों में रहने का है। 95% जॉब का पोज़ीशन खुलेगा, बस उसके लिए आपको जाने का है। डोंट थिंक कि मैंने ज़िंदगी भर सिर्फ़ यही चीज़ सीखा है, तो मैं यही चीज़ करूँगा। ऐसा नहीं होता है। हम चेंज हो चुके हैं। इट्स ऑल Mhm. अडैप्टेबिलिटी। अभी ऐसा सोचो कि ये मेरे को अभी आता था। कल मुझे क्या सीखना है वो आज सीखता हूँ मैं। परसों मुझे क्या करना है उसके लिए आज मैं सीखूँगा। ऐसा करना है अपने को अभी। ये तो काफ़ी सही लगा। एक एग्ज़ाम्पल ये था, जैसे एक मैं स्टार्टअप के बारे में पढ़ रहा था। अब तो हुँ, काफ़ी ज़्यादा वो ग्रो कर चुका है, मतलब इंडियन स्टार्टअप ही है। वो क्या कर रहा है, जैसे हाउसहोल्ड वर्कर्स वगैरह होते हैं, ठीक है? हुँ, तो इन्होंने अपने मैन्युफैक्चरिंग करी, एक छोटा-सा कैमरा लगाया, वो यहाँ पे लगा लिया है अपना कॉलर में, ठीक है? हुँ, हुँ, एंड जितने भी हाउसहोल्ड्स वर्कर होते हैं, मतलब जैसे बर्तन धोना या प्याज़ काटना है, सब्ज़ी काटना, उनके यहाँ पे कैमरा लगा दिया एंड वो उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं और ओके। अपना डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। वो उसको और वो कंपनीज़ को बेच रहे हैं जैसे रोबोट्स बना रही हैं, वो डेटा। एंड उससे वो क्या कर रहे हैं, जो रोबोट्स को वो ट्रेन कर रहे हैं कि तुम प्याज़ कैसे काटोगे, तुम बर्तन कैसे, ये अगर मान लो ऐसा यूटेंसिल है, एक बाउल है, तो उसको कैसे धोओगे? हुँ, हुँ, वो हुँ, मतलब हुँ, हुँ। हैंड मूवमेंट वगैरह सिखा रहे हैं। मतलब क्रेज़ी आइडिया चल रहे हैं आजकल तो मार्केट में बहुत ज़्यादा। Like, it's lovely. There's a lot of things I'm seeing too. There's robotic is still yet to be penetrated with AI, right? Robotic हुँ, get penetrated with AI, you will see magic happen.
Anything you could Mhm. think of, robotics would take care of it, right? So I think if you are a student right now in engineering, robotics is also one place you guys can take a look at. Foundation बिल्कुल। models will not go away anytime soon. You will need more and more foundation models, right? So become a machine learner, machine engineer, machine learning engineer, or applied हुँ, scientist, or software engineers who can use these foundation models and build newer products are still relevant. सी एआई आने की वजह से नए-नए सॉफ्टवेयर ऐसे मैजिकली नहीं बन जाएँगे, राइट? यू स्टिल नीड हुँ, टू हुँ, हुँ, यूज़ एआई टू बिल्ड न्यू सॉफ्टवेयर्स. हुँ, So हुँ, the positions are still relevant. You just need to adapt. Now, rather than just learning data structures and algorithms, learn AI. How does AI work? How does neural हुँ, network works? I gave a lecture in University of Washington recently हुँ, on how हुँ, AI works. Do check it out on my YouTube. I made it as easy as possible. Anyone with like if you're in first year of engineering, anyone can learn AI with that lecture. Very ओके, simple, very easy to understand how neural network works, how weights are adjusted, what is biases, when AI was invented, what is hallucination, where does bias come from, how can I train हुँ, my own models, how can I build a RAG. All these things I've covered in that lecture in University of Washington. I hope it gets. डेफ़िनेटली। मैं भी चेक आउट करूँगा वो चीज़ तो, काफ़ी अगर आपने बताया तो बढ़िया है, नाइस। I would think the हुँ, world will go towards more individual product style, right? हुँ, हुँ, The world now will explode with products. पहले के टाइम पे what used to happen, the companies used to scale like this, right? हुँ, The way they are scaling up, एक प्रोडक्ट बनाओ, उस प्रोडक्ट को लाखों कस्टमर को लेके आ जाओ, ठीक है? और फिर उस प्रोडक्ट को स्केल ऐसे करते हैं, ठीक है? स्केल ऐसे करने हुँ, का हुँ, मतलब है not like the technique of scaling, but हुँ, हुँ, more and more people will work on this one product, हुँ, ठीक है? हुँ, हुँ, Now with AI, building this product become cheap. So now हुँ, प्रॉब्लम हमारे कंपनीज में ऐसा होता है करके कि यार इस प्रोडक्ट को लाख कस्टमर को लाइक फ्लेवर में डालने के लिए है ना सब लोगों का अलग-अलग रिक्वायरमेंट करने के टाइम पे ये प्रोडक्ट बहुत बड़ा हो जाता है। हुँ, ठीक है? हुँ, 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 इतना बड़ा हो जाता है कि इसके इतने सारे इफ एल्स कंडीशंस होते हैं ना टू मेक एवरीवन अकोमोडेट विद देयर फीचर्स। दैट्स व्हाई यू नीड सो मेनी पीपल टू मेंटेन दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट। हुँ, नाउ हुँ, प्रोडक्ट बनाना बहुत ईज़ी हो गया है। तो रादर देन बिल्डिंग वन प्रोडक्ट फॉर 10,000 पीपल, आई विल बिल्ड 10,000 प्रोडक्ट्स फॉर 10,000 पीपल। नाउ प्रोडक्ट विल गो लाइक दिस। ठीक है? अब आपका हुँ, एम्प्लॉयी साइकिल एक प्रोडक्ट के ऊपर ऐसा नहीं जा रहा है। अब आपके प्रोडक्ट्स ऐसे जा रहे हैं, तो आपके हुँ, एम्प्लॉइज़ भी ऐसे, 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 ऐसे करके जाने वाले हैं। मतलब एक प्रोडक्ट के ऊपर 10 लोग काम करेंगे बस दैट्स इट। 1,00,000 लोगों का ज़रूरत ही नहीं है। 10 लोग विल बी एबल टू मेंटेन दैट प्रोडक्ट। फिर दूसरा प्रोडक्ट बनाओ। तो ऐसा मान के चलो आप छोटी-छोटी टीम्स के साथ काम करने वाले हो। ऐसा मान के चलो करके कि आप मोर स्टार्टअप एनवायरनमेंट में काम करने वाले हो, तो अभी ही स्टार्टअप देखना चालू कर दो। हुँ, कि ऐसे माइंडसेट में आ जाओ कि there are going to be multiple products in the future. There are going to be unlimited products in the future. I need to know how products are built end to end. अब मैं हुँ, उस गियर एक गियर के ऊपर काम करने के लिए रेडी नहीं हूँ। सिर्फ पूरे प्रोडक्ट के अंदर सिर्फ एक मॉड्यूल सीखोगे, तो फिर तुम्हारा काम नहीं चलेगा। अब आपको पूरा का प्रोडक्ट का ओनरशिप लेना है। दिस इंक्लूड्स फॉर स्टूडेंट्स, दिस हू इज़ वर्किंग इन आईटी टुडे एंड वाचिंग मी राइट नाउ, दिस इज़ फॉर इंजीनियरिंग स्टूडेंट, दिस इज़ फॉर एनीवन। Do not हुँ, be focusing on just one piece of the code. Whole code with scaling up, with databases, with full stack. Everything you need to learn today because आपको AI यूज़ करके सारी चीज़ें हुँ, बनानी है और नए-नए प्रोडक्ट्स बनाने हैं। ठीक है? हुँ, ये माइंडसेट से चलेंगे अब से, अपन सिंगल माइंडेड नहीं रहेंगे। कंफर्ट ज़ोन में नहीं जाने का है कि एक चीज़ आ गया है, मेरे को बेस्ट पेमेंट मॉड्यूल बनाने का आता है। मेरे को सब आता है, मैं कर लेगा पेमेंट मॉड्यूल में, ऐसा नहीं करने का है। ठीक है? अपने को करने का है पेमेंट मॉड्यूल के साथ क्या-क्या लगता है? गेटवे लगता है, लोड बैलेंसर लगता है उसके आगे राइट? फिर उसके आगे कस्टमर का पोर्टल लगता है, सपोर्ट साइकिल का लगता है, डेटाबेसेस लगता है, कैसेंड्रा हो गया, काफका हो गया, हुँ, नोएसक्यूएल हो गया, सीक्वल हो गया, कुछ मैटर नहीं करता। हुँ, पूरा का पूरा एंड टू एंड साइकिल सीखने का है, ठीक है? और वो हम लोग एआई यूज़ करके हर चीज़ बनाएँगे। हुँ, एक पे ध्यान नहीं देना है, पूरा ज़ूम आउट, सी व्हाट वी नीड टू लर्न। अगर वो कर लेंगे तो देन नथिंग कैन चेंज अस लाइक एआई वे एंड ऑल वी कैन हैंडल ईज़िली। हुँ, एआई विल टेक दैट वन अपना जो एक पेमेंट पे अपन कर रहे हैं ना, वो पेमेंट का कोड एंड ऑल लाइक वी आर वेरी हैप्पी नो वन अंडरस्टैंड दिस मोनोलिथिक कोड बेटर देन मी ब्रो। एआई आके जो झापड़ मारेगा ना अपने को पूरा नाचेगा अब वो गेम नहीं चलेगा कि वो आई नो दिस पीस ऑफ कोड मैं कुछ डॉक्यूमेंट नहीं बना रहा हूँ, ये ट्राइबल नॉलेज लेके बैठा हुआ कोई मुझे कंपनी से नहीं ला सकता। अभी 2 मिनट नहीं लगेगा एआई को सीखने को। अभी सिर्फ तेरा फुल स्टैक चला सकता है तेरे को। मेरे को ये भी आता है,
मुझे डेटाबेस बनाना भी आता है, मुझे उस कस्टमर से बात करना भी आता है, मैं 4 टीम से मिलकर एक प्रोडक्ट बना सकता हूँ, ये सब लगेगा। और मेरे को खुद को नहीं आता ये सब करना इतना अच्छे से, खुद हम्म। इसलिए मैं खुद रिकमेंड करूँगा। वीज़ा में काम किया हो ना, तो मुझे पेमेंट्स का बहुत ओह। ओके वीज़ा ओके कार्ड ओके ओके। कंपनी बताई क्या वो स्वैप करने हाँ वाला? हाँ हाँ वो, हाँ हाँ हाँ। तो उसमें मैं ओह। पेमेंट्स में काम करता था, तो मैं खुद अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, मैं भी कंफर्ट ज़ोन में चले गया था, हम्म कि मुझे ये मोनोलिथिक पेमेंट का गेटवे बनाना आता है, तुम्हें सब आता है, नहीं भाई। हम्म वो स्टाइल का अगर माधव आज होता ना, तो आज वो बट आई हैड टू ज़ूम आउट टू, 'कॉज़ मैं भी हाँ। वैसे ही आदमी था जैसा मैं अभी कंप्लेन कर रहा हूँ। आई हैड टू हम्म ज़ूम आउट, नहीं यार ये मोनोलिथिक कोड मेरे को बहुत अच्छे से आता है, इसका मतलब मैं रिलेवेंट हूँ, इसका मतलब ये अब वो रिलेवेंसी नहीं रहा। आई हैव टू हम्म अडैप्ट, मुझे और नई चीज़ सीखनी पड़ेगी। इसलिए मैं नेटवर्किंग में, इसलिए मैं कोपायलट बना रहा हूँ, इसलिए मैं मल्टी टीम्स के साथ कोलैबोरेशन कर रहा हूँ, इसलिए मैं हम्म जितने बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं उतना उठाने की कोशिश कर रहा हूँ। So this helps with relevancy. Else, you guys can reach me out on हम्म Instagram or LinkedIn. My handle is madhav.sumani on Instagram, and then on LinkedIn just search Madhav Sumani. DM हम्म me, comment whenever I can help. I would love to help. Um, Feel free to reach out to me. I try to read my mails. I try to read Instagram messages, and whenever I हम्म get time, I reply to people for their career path. And I usually leave like a voice note. So leave हम्म your question and leave what you are looking for. कि माधव भैया मेरे को एडवाइस दे दो, या माधव भैया दिस इज व्हाट आई एम लुकिंग फॉर, एम आई डूइंग द राइट थिंग, हम्म। मैं जैसे पढ़ूंगा रिप्लाई कर दूंगा। बिल्कुल। और मैं डिस्क्रिप्शन में आपका आईडी वगैरह डाल भी दूंगा। हाँ, एंड वो वाला जो फॉलो आपने करो यूट्यूब गाइस, पे जो मुझे बहुत मजा आएगा, फॉलो करते रहो। एंड जो आपने अच्छा लगता यूनिवर्सिटी में जो टॉक दी थी, वो जो है। लेक्चर लिया था वो वाला, वो भी उसके अंदर या डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। बढ़िया चीज़। और लास्ट बीट ऑफ एडवाइस कुछ हमारे व्यूअर्स के लिए, कुछ कुछ भी। anything, हम्म don't give up, right? हम्म World could be tough. I know AI is little groundbreaking. I know AI does everything a software engineer could do, right? But हम्म that doesn't mean your positions are gone. It just हम्म shifted from one place to another. You just need to look for those places. So हम्म keep doing what you're doing. Be persistent, be humble. Everything will line up for you. And don't give up. If people like me can survive, you can too, right? हम्म If things can happen for us, it can happen for you too. We had हम्म no money, we had a lot of problems. We had to हमको बर्तन मजना पड़ रहा है. We had to clean up utensils, cook food, um, lot of things, right? Lot of struggles. This is my eighth job. I've been हम्म changing jobs, and this is my eighth job. So it's okay if that one job fired you. It's okay. There is more. If that loan did not came through, it's okay. Find people who can help you. If हम्म you're not able to earn money, do whatever odd job you can do. Clean that utensil if you want, clean that table if you want, go serve people, be a waiter, it's okay. The main goal is for you is to see what you were in your dreams, right? When you were a kid, you used to have a dream that I want to be this person. As long as that dream stays, doesn't matter how you went there, doesn't matter you did odd jobs, you took low money, you worked for a startup, you did not clear your engineering, doesn't matter. As long as you're on the path to becoming what you dreamt of, everything is free, everything is waived off. At the end, everyone looks at the last goal, the last mile. Did he do what he wanted to do? If हम्म। you say yes, you won. And if you didn't, picture abhi baki hai mere dost, keep doing what you do. Be persistent.